السلام علیکم گائز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا، ناول آپ لوگوں کے لیے لکھ کے حاضر ہوئی ہوں، اور ساتھ میں نے ناول کے ریلیٹڈ ایموجی بھی ڈال دی ہیں۔ تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا ہاسا، تھوڑی سا طنز، تھوڑی سی چار دفاع، اور تھوڑا سا کیا نیچے موتی سے کیا۔ ناول ہے زندگی پھولوں کی عید۔ ناول پہلے پڑھ چکی ہوں میں، تو آپ میرے بھروسے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لائک اچھا ناول ہے، کافی اچھا ہے۔ اس قلم شازیہ مصطفیٰ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند ہے، اور لانگ ناول کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ بھائی صبر کرو، بس اکٹھے 2 لانگ ناول آئیں گے۔ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، بن ہی نہیں رہی، بڑی کم وقت ہے، اس وجہ سے۔ چلیں جی، ناول ریڈ کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ پھر کہتے ہیں بولتی بہت ہے، بولوں تو کہتے ہیں بولتی بہت ہے۔ چلیں۔ ادھورا ہے ہر ایک سپنا ہمارا، کبھی جھولے کبھی ساون نہیں ہے، یہ مر جاتی اپنی موت خود ہی، محبت کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو کوئی چیز جلنے کی بو آ رہی تھی۔ گھبرا کے تیزی سے کوریڈور کا ڈور کھول کے اندر کی طرف داخل ہوا۔ کچن میں سے بابا کچھ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب کیا جلا دیا بابا آپ نے؟ وہ ہال روم کا پنکھا آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ تک آیا۔ پورے گھر میں دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بابا آپ؟ اس نے زبردستی سلطان احمد کو ہٹایا، جو پتہ نہیں کیا پکانے میں اتنے مصروف تھے۔ یار بھوک لگ رہی تھی، پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واقعی بھوک سے بے حال لگ رہے تھے۔ جن لوگوں نے تو ملز میں کام کیا ہے نا، جن آدمیوں نے، انہیں تو آتا ہے کھانا بنانا۔ جنہوں نے نہیں کیا نا، پاکستان کی بات کر رہی ہوں، جنہوں نے نہیں کیا نا، پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ پراٹھا آپ سے نہیں بنے گا، میں نے پراٹھے لا کے تو رکھے تھے، وہ کیوں نہیں فرائی کر کے کھایا؟ صبح ہی ختم ہوئے ہیں، فراز نے کہا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے پراٹھے میرے چاڑنے والے بھی نہیں ہوتے۔ یہ فراز بھی بس، میں پورے 8 پیکٹ لایا تھا۔ وہ تمہاری لاڈلی 2 پیکٹ بنا کے اسکول لے گئی ہے، کہہ رہی تھی اس کی فرینڈس نے آج پارٹی رکھی ہے، سب کچھ نہ کچھ بنا کر لا رہے تھے۔ وہ پراٹھے لے گئی۔ بابا تفصیل سے دونوں کے بارے میں بتایا۔ وہ آج ان کے لیے بریڈ سیک رہا تھا۔ لیجیے آپ کا کھانا ریڈی ہے۔ ٹرے میں بریڈ اور 2 انڈے فرائی کر کے ان کے آگے رکھے۔ بابا آپ سیریس ہو کے سوچ لیں، پورا دن اکیلے پڑے رہتے ہیں اور اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں بولا، اور ایسے بولا جیسے ان کا بزرگ ہو۔ سلطان احمد نے خاصے تیکھے تیوروں سے اسے گھورا، کیونکہ وہ آج کا روز کا سبق یہی ہوتا تھا، جوان اولادوں کے آگے میں شادی کرتا اچھا لگوں گا؟ بابا آپ ابھی بھی ڈیشنگ اور ہینڈسم ہیں، میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھنک کے ذرا غصے میں بولے۔ اس وقت انہیں بھوک زیادہ لگ رہی تھی، اور وہ اس روز کے موضوع سے بیزار ہو گئے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو سر چڑھا رکھا ہے، اس لیے تم آج باپ کو یہ مشورے دے رہے ہو۔ شادی مجھے تمہاری کرنی ہے، کان کھول کے سن لو۔ انہوں نے قطعی اور حتمی فیصلہ دیا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ سلطان احمد نے صرف اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ روحا صرف چند ماہ کی تھی، اور سائرہ بیگم صرف بخار میں مبتلا ہو کے چھوڑ کے چلی گئی تھے۔ ننھی روحا کو انہوں نے کیسے پالا وہی جانتے تھے۔ وہ آج اس وقت 14 سال کا اور فراز 7 کا تھا۔ وہ آج نے بھی اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو بہت اچھی طرح رکھ کے بابا کا ساتھ ہی دیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ اٹھنے لگا۔ وہ آج تمہاری عمر ہو گئی اب شادی کی، بہو گھر آئے گی تو گھر کو وہی سنبھالے گی۔ ضروری ہے وہ گھر ہی سنبھالے؟ کیا پتہ گھر ہی الگ بنا لے۔ وہ ترکی بولا۔ تم خود کو مضبوط بنا کے رکھو گی اور محبت اور پیار سے، تو کیوں الگ گھر بنائے گی وہ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پتہ اسے آتے ہی سسر، دیور اور نند کھٹکنے لگے، کیونکہ اکثر لڑکیاں الگ گھر کی فرمائش کرتی ہیں شادی کے بعد۔ بلا وجہ کوئی لڑکی الگ گھر کی فرمائش نہیں کرتی۔ وہ شادی کا مفہوم ہی الگ کہتا تھا، جبکہ سلطان احمد اس کی الٹی سیدھی باتوں سے اکثر پریشان اور فکر مند ہو جاتے۔ وہ شادی کا مفہوم ہی غلط سمجھتا تھا، جبکہ وہ سمجھتے تھے روحا بڑی ہو رہی ہے تو گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے یہ لڑکیاں کبھی میچور نہیں ہوتی۔ بے وقوف، عقل کا کھانا کھا لی۔ او بھائی، جب تمہاری بیوی آئے گی اس کو کہو ساری لڑکیوں کو کہہ رہے ہو خامخائی۔ اگر ہر لڑکی سمجھداری سے چلے تو ملک میں سدھار آ جائے۔ بات تیرے سن بٹھایا ملک دیتے، فضول کی بات نہیں کرو۔ تمہیں اپنے گھر کی سدھار کی ضرورت ہے، ملک کے سدھار کی فکر چھوڑو۔ انہوں نے ضرورت درشت لہجے میں اسے سرزنش کیا۔ وہ آج مسکرانے لگا۔ وہ اکثر ایسی ہی بات کو گھماتا تھا، مگر یہ بات ہے، یہ طے ہے، میں شادی بالکل نہیں کروں گا۔ وہ بھی
पुरजोर से लहजे में जता के चला गया। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें भी बीवी की ज़रूरत है। ये जो हर वक्त गुस्सा सवार रहता है बेतरतीबी की वजह से, वो सब खत्म हो जाएगा। वो भी तो जवानों के तकाज़ों को खूब समझते थे। गुस्सा तो मुझे आपकी ज़िद पर सवार रहता है, आप ही शादी कर लें। इसने हाँक लगाई। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं तुम्हारा बाइकआउट कर दूंगा। बाबा की आखिरी धमकी बस यही होती थी। वो करते भी ऐसा ही थे, 1-2 दिन तक वो हाथ से बात करना बंद करते थे। अच्छा सोने, मुझे बता दे रात के लिए क्या लाऊं? रोहा और फराज आ जाए कोचिंग से, फिर इनसे पूछ के लाना। सुल्तान अहमद डाइनिंग टेबल से ट्रे उठा के किचन में लेके। वो खासे कमज़ोर और बीमार भी रहने लगे थे। ब्लड प्रेशर बात बात पर बढ़ जाता था और एक शुगर थी। मीठे के अलग शौकीन थे और अब छुप के खाते थे। वाह भाभी, क्या ज़बरदस्त सीन था। बस हीरो हीरोइन से मोहब्बत का इजहार नहीं करता था। तुम आहिस्ता बोला करो, अम्मी ने सुन लिया तो फिर से ज़बरदस्त डांट पड़ेगी। शबनम भाभी ने इसे समझाया। आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ। तायशा ने डाइजेस्ट जल्दी से एक तरफ छुपाया। अम्मी की डांट पड़ सकती थी क्योंकि वो यहीं लाउंज की तरफ आ गई थी। तुम ऐसी बैठी हो? मुनीब के कपड़े इस्त्री करने को कहे थे। इधर आके बैठ गई। इन्हें वो टीवी देखती नजर आई तो वो सरजनिश किए बिना नहीं रही थी। तायशा का मुंह बन गया। अम्मी, मॉर्निंग शो ही तो देख रही हूँ। शबनम भाभी मुस्कुरा रही थी। वो सबूर के लिए फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर रही थी। वो सुबह स्कूल जाते हुए लंच में बनाने की फरमाइश करके गया था। तुम्हारे मॉर्निंग शो को आग लगे, उठो जल्दी इस्त्री करो। और हाँ, इसकी अलमारी के कपड़े भी तय करके रख देना, सारे बिखरे पड़े हैं। मोबाइल को कहती होती है मम्मा, आग लगे तुम्हारे मोबाइल को। मैं इकलौती हूँ, ज़रा भी आप मेरा ख्याल नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है मैं ले पालक हूँ। वो मनमनाती हुई चिटके गोया हुई। तुम ज़्यादा फजूल बकने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? इकलौती हो तो सर पर बिठा लूँ? अम्मी, मैं अब ऐसा भी नहीं कह रही। अम्मी अम्मी ने टीवी ऑफ कर दिया तो वो और खिसिया गई। तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें निकारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ससुराल जाके बस ये रसाले, टीवी और बंद ड्रामे ही तो देखोगी। क्या मतलब है ससुराल जाके लड़की को ये सब देखना मना होता है? वो तुर्की बोली। फजूल की बातें करवा लो इससे तो बस। जाओ तायशा, अम्मी तुमसे जो कह रही हैं वो करो। क्यों इन्हें गुस्सा दिलाती हो? शबनम भाभी ने इसे प्यार से समझा कर उठने को कहा। वो तो शुक्र करो तुम्हें भावच भी अच्छी मिली है, वरना तुम जो इतना पटर पटर बोलती हो सब बंद हो जाती। जब सारा काम खुद करना पड़ता। रिफत को बहू अच्छी मिली थी, वो शुक्र अदा करती थी जिसने घर की जिम्मेदारी में इनका हाथ बैठाया हुआ था। शबनम मुस्कुराने लगी। तायशा खिसिया के उठ गई। इसका जहन अभी भी डाइजेस्ट के हीरो में ही उलझा हुआ था। हीरो ने अभी तक मोहब्बत का इजहार जो नहीं किया था। क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद से मोहब्बत के इजहार भी नहीं करते? अरे थोड़ा रोमांस भी तो होता है। वो मुनीब के कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ साथ खुद से भी हम कलाम थी। सारा का मंगेतर से मोहब्बत और प्यार की इजहार करता रहता है, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। तायशा को अपनी खालाजाद कज़न याद आ गई जिसकी अभी गुज़िश्ता दिनों में ही मंगनी हुई थी। इससे दोस्ती भी बहुत थी, दोनों बातें भी खूब करते थे। पता नहीं मेरा नसीब में क्या होगा, कहीं खड़ूस ही ना मिल जाए चाची जान के भतीजे जैसा जो मुस्कुराता भी नहीं। उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ। लग गई जल्दी से खुद को सोचने लगी हुई थी। जल्दी से खुद को सर्जनिश की और अलमारी के कपड़े तय करने लगी, वरना अम्मी की फिर डांट सुनने को मिल सकती थी। अलमारी की सेटिंग करके वो बाकी मॉर्निंग शो देखने बैठ गई। दोपहर में तो फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो ऐसा करना सलाद बना लेना। ओके भाभी, सोफे पर दोनों घुटने समेट के बैठती हुई बोली। फिर ये देखने बैठ गई। अम्मी काम करके बैठी है, देखने दे। भाभी ने इसकी हिमायत में कहा। तुम इसे भी तो देखो, काम से कितना बचती है। बचती नहीं है बल्कि जल्दी करती है। बस इसे थोड़ी तफरी भी चाहिए। आप जानती इस उम्र में लड़कियां क्या क्या शौक रखती हैं। इसे सिर्फ रसालों और टीवी के शौक है, खाने पकाने से क्या दिलचस्पी है। वो तो तुम इसे बचा लेती हो, मगर इसका भी तो सोचो। ससुराल में हर तरह का काम करना पड़ता है। खुद को देखो, तुम सारे काम करती हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने सब सिखाया है। मैं भी चाहती हूँ ये सारे कामों की आदत डाल ले। रिफत इसीलिए इसके पीछे पड़ी रहती थी। इनका देवरानी ने हल्का सा जिक्र किया था अपने भतीजे के रिश्ते का। हो सकता है इनका इरादा हो। इनके घर का निज़ाम जानती थी। माँ सर पर नहीं थी, बाप ने ही बच्चों को पाला था। आमना तो हर हफ्ते जाके भाई की खबर ले आती थी। चलो मेरे भाई, अभी उसे कह रही थी कि फुफ्फो के भतीजे जैसा ना और लगता है वही मिल जाएगा। अम्मी जब सर पर पड़ेगी कर लेगी, मुझे इसका अंदाज़ा है। भाभी को जैसे कोई उम्मीद थी वो सारे काम खुश उसलूबी से करेगी। वो अपनी सास को हर वक्त तसल्ली और इत्मीनान दिलाती रहती थी। तो तायशा को भाभी की तो सपोर्ट हासिल थी, इसलिए भी वो फैल जाती थी। आमना फूफो सुबह से आई हुई थी। हफ्ते को बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी, इसलिए वो अक्सर हफ्ते को सुबह से आ जाती थी और रात को घर जाती थी। इसी बहाने से कुछ ढंग का खाना मिल जाता और कुछ वो पका के फ्रीज भी कर जाती थी। समझा लो इसे, मेरे सर पर सहरा सजाना चाहता है। इस उम्र में सुल्तान अहमद ने इससे गोया शिकायत ही की थी। वह आज पहलू बदल के बैठ गया। इसी इतने शोर से कोफत हुई थी।
اسفر، سمیرہ اور نمرہ کے ساتھ ساتھ فراز اور روحا کا بھی شور تھا۔ لگتا ہے بھائی جان آپ کو ہی شادی کرنی پڑے گی۔ آمنہ کے دماغ تو بہت کچھ سوچ رہا تھا کیونکہ وہ آج کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ شکر ہے پھپھو آپ کو بھی میری بات سمجھ آئی۔ شرم تو نہیں آتی باپ کی شادی کی بات کرتے ہوئے؟ مجھے اگر شادی کرنی ہوتی تو روحا جب چھوٹی تھی اس وقت کر لیتا، مگر میں نے صرف تم لوگوں کا سوچا، میرے بچوں پر دوسری ماں کا سایہ نہ پڑے، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ آج بڑا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ سر پر صحرا سجے، مگر وہ باپ کے پیچھے پڑا ہے۔ سلطان احمد اسے خاصے سنجیدہ اور برہم ہو رہے تھے۔ آمنہ نے ان کے چہرے کے تاثر دیکھے اور وہ بہت دل گرفتہ بھی نظر آ رہے تھے۔ ہر وقت بچوں کی فکر رہتی تھی۔ شادی کی آپ کو ضرورت ہے، مجھے نہیں، وہاج نے گویا انہیں چتایا۔ اس گھر کو بہو کی ضرورت ہے اور یہ ٹھیک بات بھی ہے۔ مجھے تم لوگوں کے فرض ادا کرنے ہیں، ضروری ہے میرا فرض ادا کریں۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جو آپ کی عمر ہے اس عمر میں لوگ شادی نہیں کرتے؟ اگر میں آپ کی تنہائی کا خیال کر کے ضد کر رہا ہوں تو کیا غلط ہے؟ تم میرے باپ نہیں ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ وہاج لب بھیج کے رہ گیا۔ بابا کا چہرہ درشت ہو رہا تھا۔ ارے آپ لوگ تو لڑنے لگے، آمنہ درمیان میں بول اٹھی کیونکہ دونوں باپ بیٹے میں سیریس معاملہ ہونے لگا تھا۔ آپ لوگ میری بات تو سنیں۔ پھپھو میں تو جا رہا ہوں سونے، کیونکہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا۔ آفس سے چھٹی میں نے آرام کے لیے کی ہے، 2 دن آرام ہی کر لوں۔ بیٹھ جاؤ آرام سے اور میری بات دھیان سے سنو۔ انہوں نے وہاج کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی صوفے پہ بٹھا دیا۔ جوان ہو گئے ہو، کوئی بچے نہیں ہو اور شادی تمہاری ہی ہوگی۔ ایسا میں کروں گا نہیں۔ اس نے بھی ضدی لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ میں نے سوچ سمجھ کے تمہارے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہی اس گھر کے لیے ٹھیک رہے گی۔ تم اسے کچھ بھی کہہ لو، تم اس کی ضد جانتی ہو۔ سلطان احمد اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے تفکر زدہ رہنے لگے تھے۔ مگر میری بھی ضد اسے ماننی ہوگی۔ پھپھو پلیز۔ اس نے چڑ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ بھائی جان میں نے معیز بھائی کی بیٹی تائشہ واٹ؟ وہ لڑکی؟ کبھی نہیں۔ وہ تو بیڈ سے اچھل گیا کیونکہ تائشہ کو وہ جانتا تھا۔ ٹی وی رسالے صرف اس کا خبر تھا۔ دوسری بات اسے کوئی کام نہیں آتا تھا۔ وہ جب بھی پھپھو سے ملنے گیا تھا اس لڑکی کے گن پتہ چلتے رہتے تھے۔ آمنہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، سیدھی سادی لڑکی ہے اور لڑکیوں کی طرح اس میں چالاکی اور مکاری نہیں ہے۔ پھپھو آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ وہ طنزیہ بولا۔ میں تائشہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، اچھی بچی ہے، اس لیے تمہارے لیے یہی مناسب رہے گی۔ ایسا تو آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں اس لڑکی میں سوائے بچپنے کے کچھ نہیں۔ کبھی کچھ میچور لڑکی کا کام اس گھر میں وہاں جڑیل گھوڑا بنا ہوا تھا۔ اس نے جیسے مصمم ارادہ باندھا ہوا تھا شادی نہ کرنے کا۔ شادی کے بعد ساری لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور پھر جب گود میں بچہ آتا ہے سارا بچپنا ختم ہو جاتا ہے۔ آمنہ نے اسے خاصے مدبرانہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ وہاج نے پہلو بدلا، جبکہ سلطان احمد کے لب مسکرانے لگے تھے کیونکہ آمنہ جو پلاننگ کر کے آئی تھی اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ مگر مجھے اس لڑکی سے کیا، کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، آپ بابا کی کروا دیں۔ اس لڑکی سے؟ سلطان احمد نے جھٹ سے کہا۔ نہیں، کسی دوسری لڑکی سے۔ بھائی جان میں نے تو اپنی جٹھانی سے تائشہ کے لیے بات کر لی ہے۔ پھپھو آپ نے ایسے کیسے کر لی؟ پہلے مجھ سے تو بات کرتی اور پھر میری زندگی کا فیصلہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تمہاری پھپھو ہوں اور پھپھو بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں سے جتایا۔ وہاج بہت تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ سلطان احمد سے وہ کہہ گئی تھی وہاج کے لیے وہ بات کر چکی ہیں اور وہ وہاج کی شادی تائشہ سے ہی کروا کے رہیں گی۔ تم آج سامان کی لسٹ بنا لینا، کیا کیا چاہیے، اس نے روحا سے کہا جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ یار بھائی یہ مجھ سے لسٹ نہیں بنوایا کرے، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، پھر بعد میں فراز بھائی کہتے ہیں تم نے یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا۔ وہ کسی آگ کے بیزاری سے بولی۔ آپ شادی کر لیں گے تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے تو آسانی ہوگی۔ یہ اماں بن کے باتیں کب سے کرنے لگی ہو؟ وہاج نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ پھپھو کہہ کے گئی ہیں آپ کی شادی کا، وہ بھی تائشہ باجی سے۔ بھائی میری اور ان کی خوب جمے گی، زندہ دل سی ہیں، ہر چیز کا شوق رکھنے والی۔ تم 2 بچے اس گھر میں کم ہو جو دوسری کی آنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ ناگواری سے گویا ہوا وہ تائشہ کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آمنہ پھپھو کے سخت آرڈر پر وہ چپ تھا مگر اپنی ضد پر قائم بھی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے وہ بچی ہیں، ورنہ وہ بہت اچھی ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اچھی ہے یا بری، مجھے وہ سیریس ہی پسند نہیں۔ تم جلدی سے لسٹ بناؤ اور مجھے دے کے جاؤ، میں اندر اپنے روم میں ہوں۔ مجھ سے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے چلا گیا۔ وہاج کا تائشہ کے نام پر موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے جھمیلوں میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس گھر میں ایک میچور لڑکی کا کام تھا جو آتے ہی سب کچھ سنبھال لے۔ گلا خراب ہو گیا اور ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان احمد نے سختی سے منع کر دیا تھا ان سے شادی کا نام بھی نہ لیا جائے۔ یہ لیجیے لسٹ، اور ہاں مایونیز کی 2 بوتل لائیے گا۔ روحا نے لسٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لاسٹ ٹائم بھی 2 ہی لایا تھا، تم نے اسکول میں لے جا کے ختم کی تھی۔ وہاج نے اس کے کان کھینچے۔ وہ تو میں سینڈوچ لے کے گئی تھی، وہ میں نے بنائی۔
تمہاری روز روز کی اسکول کی پارٹیوں سے تمہیں تنگ ہوں. تم پڑھتی بھی ہو یا پارٹیاں کرتی رہتی ہو؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لنچ تو میں لے کے جاتی ہوں، تھوڑا ایکسٹرا لے جاتی ہوں تو پارٹی ہو جاتی ہے. وہ وضاحت دینے لگی. اچھا چلو چھوڑو، تم ایسا کرنا، میں نہا لوں، لاؤں گا، برتن وغیرہ سیٹ کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا لینا. وہ بلیک پینٹ پر بلو شرٹ میں نکھرا نکھرا اسے ہدایت دیتا ہوا نکل گیا. اس سے جیسے ہی تنخواہ ملتی تھی قریبی سپر اسٹور سے مہینے کا سودا صرف لے آتا تھا تاکہ گھر میں پریشانی نہ ہو. راستے میں آمنہ پھپھو کی کال آ گئی تو اسے واپسی میں ان کی طرف بھی جانا پڑ گیا. وہ ہاتھ جھچکتا ہوا اندر آیا تھا کیونکہ کوریڈور اور ہال کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہاں ہے سب؟ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی. ارے چچی جان نے ابو امی سے بات کی ہے اور اسی اکڑو کہہ سکتے ہیں، اکھڑ بھی کہہ سکتے ہیں. اسے عقب سے عائشہ کی آواز آئی مگر دکھائی نہیں دی. کہاں ہے؟ شاید وہ اندر ڈرائنگ روم میں کسی سے سیل پر بات کر رہی تھی. تمہیں نہیں پتا وہ شخص ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے، کسی کی سنتا تو بالکل نہیں. پتہ نہیں رومانس بھی آتا ہے یا نہیں. لا حول ولا قوت. یہ ہیرو نے بولا، میں نے نہیں بولا. وہ آج کو اس کی ایسی بات سن کے غصہ ہی آ گیا. اس لڑکی کا یہی لاؤبلی اور بچپنا تو اسے بالکل نہیں پسند تھا. پتہ نہیں پھوپھو نے اس میں کیا دیکھ لیا تھا. ارے رکو، مجھے لگتا ہے باہر کوئی ہے. وہ جیسے ہی سیل کان سے لگایا باہر آئی. وہ آج کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رک گیا. اوف مارے گئے. وہ آج کی آنکھوں میں غصہ نمایا تھا. تائشہ سرپٹ اندر بھاگ لی. کچھ ہی دیر میں آمنہ پھوپھو اور بھابھی آ گئی تھی. آپ نے شاید کسی کام سے بلوایا تھا؟ ہاں میں نے قورمہ پکایا تھا، لے جاؤ. پھوپھو اس کی کیا ضرورت تھی، میں نہاری لے کے جا رہا ہوں. بہاج کو اچھا نہیں لگتا تھا آمنہ بھری پڑی سسرال میں رہتی تھی، یوں ہر وقت کھانے پکا کے دینا، کہیں کوئی اعتراض نہیں کرے. گوشت تو میں تمہارے گھر سے ہی لائی تھی، بھائی جان نے کہا تھا قورمے کا دل کر رہا ہے پکا کے بھیج دینا. آمنہ نے باکس پیک کر کے اسے تھمایا. وہ آج ٹھنڈا چلے گا؟ بھابھی نے پوچھا. ارے پوچھتی کیا ہو، لے کے آؤ. تائشہ کی امی بھی آ گئی تھی. وہ آج کو پھر مروت میں بیٹھنا پڑا مگر اس کے کانوں میں تائشہ کی باتیں گونج رہی تھی. لا حول ولا قوت. جب سے اسے علم ہوا تھا وہ آج کا پرپوزل اس کے لیے آیا، اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ امی ابو نے کہا تھا انہیں مثبت جواب ہی دیں گے. بھابھی میرے لیے یہی شخص رہ گیا، ذرا بھی نہیں ہنستا اور غصہ تو ناک پر رہتا ہے. تائشہ لب کاٹ رہی تھی. تم جا کے اسے ہنسانے والی باتیں کرنا اور غصے والی باتیں نہیں کرنا. بھابھی معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے گویا ہے. میرڈ وومن کا یہی ہوتا ہے، ایسی ویسی باتیں کرتی رہتی ہیں. آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ وہ منہ بسوڑنے لگی. ارے مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، تم اچھے گھر میں بیاہ کے جا رہی ہو. انہوں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی تھی. شادی ہو جانے دو، پھر وہ اچھا بھی لگنے لگے گا. وہ پھر اسے معنی خیزی سے چھیڑنے لگی تھی. تائشہ انہیں گھورنے لگی. دنیا میں میرے لیے صرف یہی ایک رشتہ رہ گیا ہے. ارے بھابھی امی اور ابو کو کہیں کچھ دن انتظار کریں، ہو سکتا ہے اچھا رشتہ آ جائے. عائشہ کو پریشانی مہاج کے سنجیدہ مزاج کی تھی جو بات بھی ناپ تول کے کرتا تھا. تائشہ کو سوئی. اور کل کی اس نے ساری باتیں بھی تو سن لی ہوں گی، کیسے وہ سیل لے کے بھاگ گئی تھی. بھابھی کو تو کہا ہی نہیں کیا تھا. تم دیکھو وہ آج پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، سب تمہارے کہنے پر چلیں گے. ایسا آمنہ چچی کہہ رہی ہوں گی. اس نے جھٹ کہا. بھابھی ایسا آمنہ چچی کو لگتا ہے، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوگا. تائشہ کے اندر تو ڈر پنجے گاڑے بیٹھا تھا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوچی ہے میری شادی کی. پہلی سارا کی تو انجوائے کر لیتی، شادی سارا مزہ خراب کر دیا. اسے سارا کی شادی کا افسوس بھی تھا کیونکہ اس کی شادی عید کے بعد تھی. اس نے کیا کیا نہیں سوچا تھا، کیسے کیسے ڈریس بنائے گی. ارے اپنی شادی کے بعد تو زیادہ کھل کے انجوائے کرو گی، ساڑی شرارے لہنگے پہنا. بھابھی نے ہنس کے کہا. رہنے دے، آپ تو مجھے چڑھائے جا رہی ہیں. وہ ناخن کترنے لگی. جہاں کوئی فکر مندی کی بات ہوتی ہے وہ ناخن چبانے لگتی. اب ناخن تو نہ چباؤ. انہوں نے تائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. وہ کسی آ کے رہ گئی. بھابھی اس پر پیار بھری نگاہ ڈال کے چلی گئی اور وہ اسے کچھ وقت سوچنے کا بھی دینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے. ہائے مجھ پر اتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، کیسے میں مینیج کروں گی. اسے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے. ماسی کے نام کی اس کے گھر میں کوئی زیرو نہیں آتی تھی مگر آمنہ نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ ماسی کا بندوبست کر دیں گی. کیسے سب کروں گی، کتنی آرام چین کی میری زندگی ہے. وہ سر تکیے پہ رکھ کے لیٹ گئی. میرے والے حالات ہیں، سکون سے گھر میں رہ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بتا کے نہیں آتی، اور اسے اپنی شادی وہ بھی وہاج کے ساتھ ایک پریشانی لگ رہی تھی. وہ جو ذمہ داریوں سے بھاگتی تھی اب اچانک سب کچھ پڑنے والا تھا. یہ سوچ سوچ کے گھبراہٹ تاری تھی. وہ آج احمد تمہیں بھی میں ہی ملی تھی. آمنہ چچی خود زبردستی تم سے کروا رہی ہیں. ہائے آمنہ چچی مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں. وہ خود ہی ہم کلام ہو رہی تھی. ہائے میرے یہ رسالے ٹی وی تو لگتا ہے سب ختم ہو جائیں گے. سارا کی بچی تو نہیں نظر لگائی ہے مجھے، میں کیسے آزاد پھر رہی تھی اور مجھے تجھے دیکھ دیکھ کے جیلسی ہوگی. کیسے طرح منگیتر تجھ سے پیار رومانس کی باتیں کرتا ہے.
अब कोई फिर मैं उसकी बात करेगा ना, मुझे ला हौला वाला कुव्वत याद आएगा। वो चेहरे के तासरात बदल के सारी बातें सोच रही थी। मुझे कभी उम्मीद है आमना चाची मेरी अपने बददिमाग भतीजे से शादी करवा के ही रहेंगी। इसका चेहरा रोने जैसा हो रहा था। आज तो रात का खाना भी नहीं खाया था। घर में इसकी शादी की जो बातें हो रही थी, पता है रमज़ान भी ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी तो ईद भी ख़राब कर दी इसने। इसने आंखें बंद कर ली थी। सोच के सर दुखने लगा था। वह आज के बारे में अच्छा सोचना चाहती थी, मगर वह आज के कल के चेहरे के तासरात इसे और डरा रहे थे, क्योंकि वो और सारा इसके मुतालिक ही तो बात कर रहे थे। पता नहीं बाद में कैसा रिएक्ट करेगा ये शख्स, कहीं जान से ही ना मार डाले। बाबा सुन ले, मैं किसी तरह भी इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। वह आज का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था, क्योंकि तायशा किसी से इसके मुतालिक जो बातें करी थी, इसे सोच के तो इसे हैरानगी के साथ गुस्सा भी आया था। इसने अंदाज़ा लगा लिया था तायशा ख्वाब व ख्याल और रसालों की दुनिया में रहने वाली लड़की है। वो हकीकत को नहीं जानती थी। डाइजेस्ट को रसाले कहते हैं, ठीक है, शायद किसी को ना बताओ तो। ठीक है, आप अपने बाप को बेइज्जत करवा दो बहन के ससुराल में। सुल्तान अहमद संजीदा और अफसरदा लहजे में गोया हुए। वो आज की अकड़ की वजह से दिल गिरफ्तार हो गए थे। भाईजान आपका क्या है, शादी कर लें, एक कोने में वो पड़ी रहेगी, कम से कम हमारे काम तो कर देगी। फराज ने जैसे माकूल तजवीज़ दी। तुम्हारे काम वैसे भी हो रहे हैं, ज़रूरी है वही आकर करे। इसने फराज को डांट दिया। आप आमना फूफो को मना करते हैं। मुझ में सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आमना ने बात पक्की कर दी है। आई थिंक ये मुझ में मना करने की ऐसे कुछ होएगा। सुल्तान अहमद ने इसके तने हुए चेहरे को इस्तफामिया निगाहों से देखा। इस घर को मैच्योर लड़की की ज़रूरत है। तुम अपनी फजूल बात अपने पास रखो। उन्होंने इसे झिड़क दिया। मैंने बुलाया है, आमना को रात में आएगी, तुम खुद बात कर लेना। उन्होंने हाथ उठा के गोया बात ही खत्म कर दी। वह आज से आकर रह गया। फराज बड़े सोफे पर दुबका बैठा था। रोहा लब बींच के रह गई। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा भाई को तासुर से देख रही थी। रात में आमना आ गई, साथ में जाकर भी थे। उन्होंने पहले तो वहाज की अच्छी तरह खबर ली, और फिर उन्होंने जो धमाका किया वहाज को हिला के रख गया। पुप्पो आप ये क्या कह रही हैं? इसकी तो समात यकीन ही नहीं कर रही थी। आमना होश में तो हो, वो मेरी बच्ची की तरह है। सुल्तान अहमद भी घबरा गए थे, और वहाज तो पहलू पे पहलू बदले जा रहा था। जाकर साहब लब पीछे बैठे थे। अच्छा, यहाँ पे इसके बाप का कह रही है कि लेकिन ना वो उसकी शादी, तायशा की शादी ना इसके बाप से करवा देगी। तभी वो कहता है कि होश में तो, इससे तो मेरी इज्जत का पास है ही नहीं। आप तो मेरे भाई हैं, आपसे मैं हर बात मनवा सकती हूँ। भाई की औलाद पर मेरा क्या हक? वो जज्बाती तौर पर इसे ब्लैकमेल करने लगी, और किन अखियों से वहाज को भी देख रही थी। वहाज एक नज़र इन पर डाल दी। वो वाकई खासी संजीदा थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो कश्मकश में पड़ गया था। आमना क्यों तुम सुल्तान भाई का इस उम्र में लोगों से मजाक बनवाओगी? जाकर साहब ने भी कहा। मैंने जो कहा है वो तो करूँगी। बोलिए भाईजान, मैं आपके लिए बात करूं? आमना कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हुई, इस उम्र में मेरे सर में खाक डलवाने का इरादा है? वो अजीब टेंशन और उलझन का शिकार हो गए। फुप्पो आप क्या कह रही हैं? ये तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रही, ये मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ। और ये आमना, ये भी तो देखो, इस बच्ची में और मेरी उम्र में फ़र्क। उम्र का क्या है, शादी के बाद फ़र्क भी मिट जाता है। तायशा अच्छी लड़की है, इसका रिश्ता गंवाना नहीं चाहती। आमना ने साथ ही वजाहत भी दी, और वो जैसे इरादा बांध के ही आई थी। वो तायशा का रिश्ता किसी से भी करवा के जाएंगी। आमना मोइज़ भाई की इकलौती बेटी है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप बस हामी भरें। फुप्पो आपको क्या हो गया है? तायशा और बाबा की उम्र में तजाद देखें। वह हाथ से बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो वो गोया हुआ। जाकिर साहब होंठों पर अपने दाएं हाथ की मुट्ठी टिकाए बैठे थे। उम्र कोई नहीं देख रहा मोइज़ भाई, रिश्ता अच्छा देखेंगे। मेरा भाई आज भी हैंडसम लगता है। आमना ने तफक्कुर ज़दा लहजे में कहते हुए सुल्तान अहमद के शाने पर हाथ रखा। फराज, अंदर तो कुछ और ही कहानी हो रही है। बाबा की और तायशा बाजी की शादी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। रोहा ने फराज से फिक्रमंद लहजे में कहा। वो चक्कर काटने लगी थी। भाई तो फजूल की जिद पाल के बैठ गए हैं शादी न करने की। फराज भी ड्राइंग रूम के बाहर जाके खड़ा हुआ था, ताकि सुने तो फैसला क्या हुआ। हाँ बेटा, अलग मेरा मजाक बनाता रहता है, तुम भी भाई का मजाक उड़ाओ। सुल्तान अहमद दुख अफसुर्दा लहजे में बोले। वो बहुत थके थके भी लग रहे थे। वो बच्ची मोइज़ भाई के लिए बोझ नहीं है जो किसी के भी हवाले कर दें। बाबा को आमना की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मोइज़ भाई से बात मैं कर लूँगी। वो बोली। वहाज तो तजब्जुब का शिकार था। बाबा इतने मायूस और अफसरदा हो रहे थे, इन पर इसे तरस आने लगा। और फिर तायशा का क्या कसूर? बाबा के लिए तो वो बच्चों की बराबर है। वो इनके घर में इनकी बीवी बन के लोग इतनी बातें करेंगे, और बाबा भी कब खुश रहेंगे? वहाज अहमद, तुम्हें ये कुर्बानी देनी है। चाहे तुम इसे दिल से कबूल नहीं करोगे, मगर मजबूरी में इसे कबूल करना होगा। अंदर से इसे कोई कह रहा था। फूफू आप मेरे लिए बात कर लें, मैं राजी हूँ इस शादी के लिए।
अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन छुरी तो ले आएगी। आ गया बस। वो आज रुका नहीं, ये कह कर ड्राइंग रूम से जैसे निकला फराज से इसी की टक्कर हो गई। क्या वहशत है। वो गुस्सा होने लगा, फराज तो जज्बस हो गया। अंदर जाके तमाशा देखो, बाहर क्यों खड़े हो। वो इस पर गुस्सा निकाल कर चला गया। फराज खुद को संभाल के अंदर आया तो देखा पप्पो और फूफा दोनों हंस रहे थे और बाबा के लब मुस्कुरा रहे थे। फराज समझ गया था ये फूफो का ड्रामा था। आमना तुमने तो उसे काबू कर दिया। भाईजान मुझे पता था घी टेढ़ी उंगली से ना निकलेगा, इसीलिए ये सब किया। आमना ने पुरजोश हो रही थी जैसे कोई मार का सर कर लिया। आई थिंक घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा, ऐसे आएगा। मैं तो सिटपटा गया था, ये तुम क्या कह रही हो सुल्तान है। मैं तो एकदम से मुतमईन हो गए थे। वहाँ आज की रजामंदी चाहिए, जबरदस्ती की रजामंदी थी, मान तो गया था ना। हाय ये क्या हो गया, मेरी आज़ादी के दिन ख़त्म हुए। वो अपने धड़कते दिल को थाम के बोल रही थी। सारा को इसके प्रपोजल की खबर मिली तो फौरन ही अम्मी के साथ इससे मिलने चली गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कितना खूबसूरत हैंडसम और डैशिंग बंदा मिल रहा है। सारा को तो इस पर इश्क आने लगा, इतने अच्छे घर में जो जाएगी। खाक खुश हूँ, इतना सड़ियल मिजाज है, पता नहीं हंसता भी है या नहीं। तायशा को तो इस बात की फिक्र थी वह आज हंसता है नहीं है, और बाद में भी पता नहीं इसके साथ क्या करेगा। तुम्हें सिर्फ इस बात की परवाह है वो और फिक्र है वो हंसता नहीं। सारा ने इसके सते हुए चेहरे को चौंक के देखा, वो और खी खी करके हंस भी थी। अरे मुझे और भी बातों की फिक्र है। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। तुम्हें फजूल ही बातों की फिक्र होगी। हाँ खुद की तो इतने अच्छे बंदे से शादी हो रही है, तुम्हें सुबह शाम प्यार भरे जुमले सुनने को मिलेंगे। इसे सारा पर इश्क आया। ये सारी शादी से पहले का प्यार होता है जो तुम्हें मुझ पर इश्क आता है। देखना फरहान भी और मर्दों की तरह ही होंगे जिन्हें सिर्फ बीवी नुकरानी की तरह ही चाहिए होगी। तुम तो हो ना शुक्री, इतना प्यार करते हैं फरहान भाई और तुम इनकी नीयत पर शक कर रही हो। तायशा बुरा मान के गोया हुई। तुम देखना मसाली जिंदगी तो तुम्हारी होगी। तुम अपने बचपने से बाहर आके जरा संजीदा होके सोच लो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तायशा को जैसे इसकी हदायत और नसीहतें अच्छी नहीं लगी थी। अरे भाई लड़कियों आ जाओ, चाय रेडी है। भाभी दोनों को बुलाने चली आई थी। शबनम भाभी आप कितनी अच्छी हैं, बस बस मस्का नहीं लगाओ। भाभी को पता है तुम्हें वो समोसे पकौड़े भी फिर भी देंगी, तायशा ने सारा के बोलने पर कहा। शबनम भाभी मुस्कुराने लगी थी। उन्होंने शाम की चाय पर अच्छा खासा इत्मीनान किया था। आपा शादी अब इतनी जल्दी कर रही हैं? सुल्तान भाई कह रहे थे ईद से पहले करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं इस दफ़ा ईद पर इनकी और इनके साथ इनकी बहू हो। रिफत ने कहा तो तायशा का दिल तो धक धक किए जा रहा था। कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तुम बताओ सारा की शादी की तारीख कब की रखोगी? ईद के पहले हफ्ते में रखूंगी। इसके ससुराल वालों ने पहले ही कह दिया था। सारा तो कितनी खुशकिस्मत है, हर काम तेरा कितना आराम से होगा और मेरी शादी देख कैसे जल्दबाजी में मेरे घर वाले कर रहे हैं। तायशा ने इसके कान में कहा। आपको तो तायशा की शादी की इतनी तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी। शिगुफ्ता गोया हुई। अरे आमना को तो बुलाओ। रिफत को आमना का ख्याल आया। वो देगर मामलात भी अभी निपटाना चाह रही थी। निपटा लें फिर वो शिगुफ्ता से भी मिलेंगी। दादी जान, आमना दादी वहाज अंकल के वहाँ गई हुई हैं। अब्दुल सबूर ने इन्हें आके बताया। जी अम्मी चाची जान कह रही हैं कि क्या कर गई हैं, आप नहा रही थी इस वक्त। शबनम भाभी को भी याद आया आमना पर तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई होंगी। शगुफ्ता गोया ही। आमना तो शुरू से ही तायशा को वहाज के लिए कह रही थी, मैं ही टाले जा रही थी। फिर इनके अब्बू को वहाज अच्छा लगा। सोबर है, यही सोबरपन तो मुझे ले डूबेगा। तायशा अंदर ही अंदर बेचौताब खा रही थी। रिफत खुशी खुशी अपनी बहन को तायशा की ससुराल के बारे में बता रही थी तो तायशा सारा इस दौरान इसे अपने ड्रामे भी याद आए। वो सब भुला के टीवी के आगे बैठ गई। चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सारा ने मुस्कुरा कर मायनी खिस्सी से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी शादी हो रही है तो मैं टीवी देखना तक छोड़ दूँ? खैर ये तो तुम खुद ही बाद में छोड़ दोगी। वो फिर हंसने लगी। वहाज अहमद ऐसा शख्स है, इसके साथ रह के मुझे डर है मैं दुनिया ना छोड़ दूँ। वो कलस के रहेगी। तायशा खैर की दुआ करो, ओल फुल वक्ती रहती हो। सारा ने इसे सरजनिश किया तो तायशा को झुंझलाहट की वजह से कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, मगर वह ज़बरदस्ती टीवी ड्रामा में लगाए हुए थे। थैंक गॉड मेरी बेवकूफ़ी से पता नहीं क्या हो जाता, मुझे ऊपर वाले ने पहली अकल दे दी। भाई तुम फंस गए हो, अकल नहीं दी बेअकले। वह आज बेड पर लेटा हुआ कब से करवटें बदल रहा था। अगर बाबा की शादी तायशा से हो जाती लोग क्या कहते? इस उम्र में क्या चोंचले सूझे। फिर बाद में अगर किसी फर्द का अजाफा हो जाता फिर तो और ही लोगों को हंसने का मौका मिल जाता। अफराज और रोहा पर क्या असर पड़ता? वो खुद को ही मिलामत कर रहा था। वो तो इसने अक्लमंदी का सबूत दिया, रिश्ते को कबूल कर लिया, और ये रिश्ता इसने कैसे कबूल किया ये वही जानता था। कम उम्री में माँ का साया सर से उठा इसने और बाप ने कैसे रोहा और फराज को संभाला था, और वो खुद भी तो अम्मी को याद करता था कैसे वो इसके लाड़ उठाती थी। रोहा की पैदाइश के बाद वो ऐसी बीमार पड़ी कि वो ठीक ही नहीं हो सकी थी। काश अम्मी आप इतनी जल्दी बाबा को यूँ अकेले करके ना जाती।
वहाज को बाबा का अकेलापन ज़्यादा परेशान करता था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को घर में ही मसरूफ़ कर लिया था और अपने बच्चों के साथ बाप कम दोस्त की तरह ज़्यादा रहते थे। इससे बाबा पर फ़ख्र भी था। वो बेस्ट बाप थे जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वहाज को टेंशन और झंझलाहट हो रही थी। नापसंदीदा हस्ती हर वक्त इसके साथ रहेगी और इस पर न जाते हुए भी तवज्जो देना पड़ेगी। वो तो तायशा की तरफ देखना तक नहीं चाहता था और अब सारी ज़िंदगी के लिए इसके साथ रहेगी। कोई भी फजूल हरकत की तो मैं लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, सीधा करके रख दूंगा। मुझे पता नहीं जाने क्या समझती है और कहती है मैं भी वैसे ही बन के दिखाऊंगा। इसके अंदर का मर्द इसे चैलेंज कर रहा था। सो रहे हो? आमना की गैर मुतवक्का आमद इसे चुमकाने के लिए काफ़ी थी। वो ऑफिस से आके चेंज करके लेट गया था। खाना भी इसने नहीं खाया था। नहीं तो आप और इस वक्त उठ के बैठ गया। हाँ, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ कि अपनी पसंद से तायशा की तैयारी कर लूँ या तुम शॉपिंग पर चलोगे। इसके बिखरे हुए बेडरूम को तनकीदी निगाहों से देख रही थी। प्लीज़ मुझे तो माफ़ ही रखें, ये जनाना शॉपिंग से जिसने पहने हैं कपड़े वगैरह उसकी मर्जी और पसंद से करें। वो वाकई जिच भी हो रहा था। इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? शादी हो रही है, कोई सूली नहीं चढ़े। अगर नहीं मर्जी तो मना कर दो, मैं भाईजान के लिए बात कर लूँगी। आमना को इसकी कमज़ोरी याद आ गई थी और वह यही बात करके इसे ब्लैकमेल कर लेती थी। आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया करें। आप जानती हैं मेरे मिजाज को, फैसले बहुत सोच समझ के करता हूँ। वो भुना ही गया। आमना लब भींच के रहेगी। तुम इतने बेजार लग रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगी, देखिए फूफो, मैं ये शादी सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूँ, वरना मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं। ये तो तुम्हें शादी के कुछ अर्सा बाद पता चलेगा। ख्वाहिश और ज़रूरत का लहजा मायनी खेज और शरारती था। प्लीज़ फूफो, वो झिनक गया। वहाँ देखो, शादी एक अवलीन फ़र्ज़ है और तुम्हारी क्या इस घर की भी ज़रूरत है। तुम जानते हो सिर्फ औरत इस घर को संभाल सकती है, कोई मुलाजमा या नुकरानी नहीं, क्योंकि घर औरत ही से बनता है। वो खास संजीदा लहजे में से समझा रही थी। तायशा अच्छी लड़की है, मैंने सोच समझ के इसका नाम लिया और तुम देखना तुम इसकी शख्सियत के कायल हो जाओगे। फूफो, ये लाउबली लड़कियां घर संभाला नहीं करती। वो इनकी बात से इनकारी हुआ। तुम इसे समझना और समझाना, क्योंकि वो नई जगह होगी इसलिए घर इतनी जल्दी तो नहीं मगर जल्द संभाल ही रहेगी। आमना को कभी उम्मीद और यकीन था। तायशा हर बात जल्दी समझ लेती थी। हाँ, बस वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती थी, मगर कभी इसने खुद पर सवार नहीं किया था। और फिर ख्वाबों ख्यालों में रहना कोई जुर्म तो नहीं। लगता है आप इसकी तरफदारी करने आई हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी, कल शॉपिंग पर जाऊंगी तो रूहा को साथ ले जाऊंगी, इसी लेने आई थी। उन्होंने जल्दी से वजाहत दी। बेटा, मस्बत सोचो, मनफी नहीं। उन्होंने वहाज की शानों पर हाथ फेर के शफकत से कहा, जब मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है क्या होगा मैं सब कैसे सोच सकता हूँ। वो खुद ही तमस्खर उड़ाने लगा। तुम जो सोच बना लोगे वही होगा। अगर तुम अच्छी और मुस्बत सोच रखोगे, देखना इंशाल्लाह ताला सब तुम्हारी मर्जी से होगा। वो गहरी सोच के साथ गोया हुई। थोड़ा इसे संभलने का मौका देना, क्योंकि अपनी मर्जी से तुम इसे इसी वक्त चला सकोगे जब तुम इस पर ज़बरदस्ती कोई बात मुसल्लत नहीं करोगे। आपने मुझे जल्लाद समझ रखा है? वो बुरा मान गया। बिल्कुल भी नहीं, मगर बेटा मेरा भी दिल डर रहा है, मगर मैं भी सोच मस्बत रख रही हूँ। तुम तायशा के साथ बहुत खुश रहोगे। वो पुरअतमाद लहजे में आवाज़ में मजबूती के साथ बोल रही थी। काश ऐसा ही हो। वो इनका संजीदा चेहरा देखने लगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, कल रोहा को तुम लेने आ जाना, क्योंकि काफ़ी सामान भी होगा। जी अच्छा। इसने सआदतमंदी से सर हिलाया। इसे आमना को तंग करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी की वफात के बाद से उन्होंने इस पर खासी तवज्जो दी थी। अपना कमरा खुद भी समेट लो, कैसा बिखरा हुआ है। मैं खुद बिखरा हुआ हूँ। वो अफसुर्दगी से तुर्की व तुर्की बोला। समेटने वाली आ रही है। वो इसे छेड़ती हुई चली गई। तैयारियां इतनी जल्दी जल्दी हुई थी, दिन ऐसा लग रहा था पर लगा के उठ रहे हो। आमना पप्पो और शबनम भाभी की कोशिशों से दोनों तरफ की तैयारियां भी हो गई थी। आमना ने तायशा की भरी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी वलीमे के ड्रेस इतने स्टाइलिश और खूबसूरत थे, तायशा खुद हैरान थी। इसने ये सब कहानियों और ड्रामों फिल्मों में देखा था और इसके सामने इसके लिए भी ये हकीकत में बहुत कुछ था। हिश, मैं ये क्या टीवी ड्रामों फिल्मों का सोचना शुरू होगी। उस लड़की ने हिश किया, साथ तेबिल गई भी ऐसा करती तो अच्छा नहीं लगता। तायशा ने खुद को सरजनिश की। इसने सोच लिया था खुद ही वो टीवी रिसाले वगैरह सब खत्म कर देगी, क्योंकि वह आज जैसे गुस्से वाले शख्स के साथ इन सब शो के साथ जिंदगी नहीं चल सकती थी। भाभी का पढ़ाया हुआ सबक भी तो याद रखना था। तायशा ने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया था। फिर आमना चाची भी तो कह रही थी, तायशा बेटा तुम वहाज के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो, मगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि वहाज मिजाज का संजीदा ज़रूर है, मगर बहुत मोहब्बत और फिक्र करने वाला है। वो अपने बाप और भाई बहन का बहुत ख्याल रखता है। इसलिए अगर कभी वो गुस्से में तुम्हें कुछ कह दे तो तुम अपना दिल इसकी तरफ से बदगुमान नहीं करना, बल्कि देखना वो क्या चाहता है। जब तुम इसके रंग में रंग जाओगी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहेगा। वो इसके सर पर हाथ रखकर आहिस्ता लहजे में समझा रही थी। तायशा के दिल वहाज के नाम पर जोर जोर से धड़क रहा था।
तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझना, तुम्हें वहाँ आज नौकरानी बना कर रखेगा। वजह से इसकी सोचों को पढ़ रही थी। चाची जान मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं मैं इनके रंग भी जाऊंगी या नहीं। वो अफसुर्दगी से बोली, नहीं ऐसा नहीं सोचो, बस तुम्हें वहाँ आज को समझना होगा वो क्या चाहता है। इसने सर हिलाया। इसके दिल में तो हलचल मची हुई थी। इसने बरी की तमाम चीज़ों को गौर देखा था। आमना सारा सामान इसके रूम में ही रख गई थी। क्या सोच रही हो? शबनम भाभी भी दरवाजे पर नॉक करके चली हैं। ये इनकी आदत थी, किसी के रूम में बगैर नॉक और इजाज़त के नहीं जाती थी। भाभी ये सब सामान इतना प्यारा और कितना महंगा तरीन है। मेरी ननद कोई सस्ती है? वो तो सबसे ज़्यादा कीमती है। उन्होंने मुस्कुरा कर इसे गले लगाया। आप तो फ़ौरन ही बात घुमा देती हैं। वो झिंपी। अरे खुश होना चाहिए, इस घर की पहली और बड़ी बहू बन के जा रही हो। शबनम भाभी बोली, आप सबने बड़ी बहू कह कह के मुझे वाकई बड़ी बहू बना दिया है। वो सोचने लगी शादी में कुछ दिन ही तो थे। मेहंदी मायों का वहाज मना कर रहा था, मगर रूहा ने शोर मचाया तो वहाज की फिर किसी ने भी नहीं सुनी थी। सारी रस्में करने को सुल्तान अहमद ने भी कह दिया था। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब करना चाह रहे थे। तायशा मायों के जर्द गोटा किनारे के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। सारा तो कई बार इससे ये कह चुकी थी, माइयों के जोड़े में इतनी गजब की लग रही हो, शादी की ड्रेस में तो बिजलियां गिराओगी। तुम हाँकती रहा करो। मैं हाँक नहीं रही, बाकी सच कह रही हूँ। सारा इसके बराबर में बैठ गई। मेहंदी मायूं सब भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हुई थी। इसकी अब मेहंदी लग रही थी। भाभी रोहा के भी मेहंदी लगवा दे। तायशा को इसका ख्याल आया। ओहो, नंद का बड़ा ख्याल आ रहा है। सारा ने हंस के छेड़ा। मेरी भाभी तो मेरा ख्याल रखती है, जाहिर है जो सीखा है वही करूँगी। इसने भी खुशदिली से कहा। रोहा समेरा के साथ पार्लर गई है, वहाँ से लगवा के आएगी। आमना चाची साथ गई हैं। भाभी ने बताया, अरे शबनम, तायशा को खाना ही खिला दो। रिफत को अपनी बेटी की रुखसत होने का भी दुख था, तो साथ ही खुशी भी कि वो अपने घर रुखसत होकर जा रही थी। अम्मी मुझे भूख नहीं। वो मेहंदी लगवाते लगवाते थक गई थी। सुबह भी तुमने नाश्ता ढंग से नहीं किया। अम्मी यहाँ फिक्र नहीं करें, मैं खिला दूंगी। भाभी ने इन्हें तसल्ली दी। खिला देना, मैं ज़रा आराम कर लूँ, बहुत थकन हो रही है। वो थके थके लहजे में बोल रही थी। शबनम भाभी इसके लिए दूध में हॉर्लिक्स घोल के ले आई थी ताकि इसके पेट में कुछ जाए। क्या है भाभी, मैं नहीं पी रही। ज़्यादा नखरे नहीं करो, पियो। उन्होंने ज़बरदस्ती से पिलाया। तायशा को ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म में एनर्जी आ गई हो। सवाए सोचने के वो कुछ कर ही नहीं रही थी। खाना खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। इसके नरम और नाजुक से कोमल हाथ पाँव पर मेहंदी बहुत सच रही थी। सारा ने इसे बेड पर लेटा दिया था। मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अभी तो तुम्हें कल और परसों भी बैठना है। सारा इसके साथ ही बैठी थी। अकड़े हुए शख्स के साथ। वो सोचने लगी, सारा मुझे डर लग रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, डरने का फ़ायदा भी नहीं। वो मुस्कुराने लगी। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। वो चिड़ी। तुम सिर्फ अच्छा सोचो, डर के बारे में नहीं, क्योंकि जैसा तुम भाज भाई को समझ रही हो सकता है वो ऐसे बिल्कुल भी ना हो। वो इसे तसल्ली और इत्मीनान दिलाने लगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी। वो सोचते सोचते सो गई और शायद सारा की भी आंख लग गई थी। शबनम भाभी लाइट ऑफ करके चली गई थी। सुबह नाश्ते के बाद अब्बू और भाई जान इसे गले लगा के खूब दुआएं दी थी। इसकी आंखें बरस पड़ी थी। आपी भी अच्छी हैं, ये अच्छी है, ये तो रो भी सकती हो, हम मर्द है ना इसलिए रोते अच्छे नहीं लगते। मुनी भी इसके गले लग के नम आंखों से खोया हुआ। तुम तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तो सॉरी खुश होना चाहिए। तुम हर चीज़ पे कब्जा मिलेगा, टीवी और कंप्यूटर बिल्कुल फ्री मिलेगा। तायशा ने मुंह बना के कहा, पी ऐसी बात तो नहीं करें। मुनीब को अपनी बहन के रुखसत होने का भी गम था और गम कम खुशी ज़्यादा थी। उदासी तो ये वक्ती थी। मुनीब ने अपनी बहन को सदा खुश रहने की दिल से दुआ दी थी। आज शादी का दिन भी आन पहुंचा था। आंखें नम हुई जा रही थी। पार्लर जाने से पहले वो सबसे ही मिली थी। ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भतीजा खौफनाक नहीं है। आमना ने इसके कान में मुस्कुरा के सरगोशी की। जल्लाद तो है ना। तायशा ने अपने आंचल से आंसू के मोती साफ किए। दुआओं के साथ वो चली गई थी। सारा इसके साथ साथ ही थी। शबनम भाभी को घर और मेहमानों को भी देखना था, इसलिए वो साथ नहीं गई थी। आमना का तो कभी एक पाँव इधर तो कभी उधर। मईस भाई ने तो कह दिया था वहाँ आज की तरफ की सारी जिम्मेदारी संभाल लें, क्योंकि इधर कोई खातून तो थी नहीं जो शादी के झमेले संभालें। आमना तायशा के पार्लर जाते ही सुल्तान अहमद की तरफ रवाना हो गई थी। वाह, रूम तो बहुत शानदार सजाया है। निमरा ने वहाज के रूम का जायजा लिया। हर तरफ फूल कलियां थी जो फराज ने अपने दोस्तों के साथ मिल के डेकोरेट किया था। भाईजान तो करने ही नहीं दे रहे थे। बाबा ने डांट दिया तो चुप हुए। फराज ने बताया, कमरा कम दुकान ज़्यादा लग रहा है। वहाज ने खुद ही मजाक उड़ाया। इतना खूबसूरत तो सजाया है, बेडरूम को सजाया ही जाता है। निमरा ने अपनी मुंतिक निकाली।
वसीओ और इस बेड पर फूल, कारपेट और पर्दे, फर्नीचर भी बहुत खूबसूरत था। बेडरूम सच धज कर और भी ज़्यादा हसीन लग रहा था। वहाँ आज हद होती है, तुम ऐसे ही खड़े हो, कब कब तैयार होगे? आमना नफीस सी फाइन कलर की करामत साड़ी में सोबर सी लग रही थी। इन सबको निकालिए यहाँ से, फिर ही तैयार होऊंगा। रूहा ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी अपने शोल्डर कट बालों में ब्रश चला रही थी और समीर वहाँ आज के लैपटॉप में कुछ कर रहा था, जबकि असफर को बाबा ने शायद किसी काम में लगाया हुआ था और वो यहाँ नहीं था। चलो फराज निकलो, तुम भी तैयार हो बेटा, जल्दी जाना है। वो इन सबको यहाँ से दौड़ा के वहाज को तैयार होने की हिदायत देकर चली गई। वहाज ने ऑफ वाइट कढ़ाई वाली शेरवानी में खुद को आईने में देखा, हैंडसम लग रहा था। साथ टेबल पर एक मखमली बॉक्स भी रखा था जिसमें 2 सोने के कड़े थे जो बाबा ने दिए थे। तो तायशा की रोनुमाई के लिए ये कड़े अम्मी के थे, जो शायद बाबा ने ऐसे वक्त के लिए ही संभाल के रखे थे। आमना ने दरवाजे पर नॉक किया तो हाथ जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल आया। मेहमान भी आगे थे। बड़ी गाड़ी में मेहमान और 2 सजी हुई गाड़ियों में मेहमान, घर के तमाम अफराद आगे थे। बारात का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया था। सुल्तान अहमद और वहाज को मोई साहब और मुनीब ने गले लगाया। इस वक्त वहाज के दिल की दुनिया भी अजीब हो रही थी। जो कल तक अकेला था, आज जिसकी ज़िंदगी में कोई शामिल हो रहा था। अब तो मूवी तस्वीरें भी जदीद अंदाज में बनने लगी थी। वहाज को ये सिलसिला बहुत कोफिफ में मुब्तला कर रहा था। निकाह वगैरह से फारिग हुए तो स्टेज पर तायशा को शबनम भाभी और सारा ले आई थी। वहाज की निगाह चम गई। वो परी पैक कर ब्राइडल ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निगाह इसकी नीचे ही थी। अब क्यों आंखें फाड़ के देख रहे हो तुम? इसे वहाज के पहलू में बिठा दिया गया था। तायशा के दिल की धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया था। वो कहीं किसी और की तरफ देख ही नहीं रही थी। वहाज को लग रहा था वो खुद को टीवी ड्रामों की हीरोइन ही समझ रही थी। सारी रस्में भाभी और रिफत को कर रही थी। सब ये स्टेज पर जमा थे। रोहा तो इतनी खुश थी, वहाज इसका चेहरा देख के मुस्कुरा दिया। शुक्र मुस्कुराए तो आमना ने इसके कान में सरगोशी की और वो छीन के घूमने लगा। डिनर के बाद ही रुखसती का सिलसिला शुरू हो गया। वहाज को इस फॉर्मल से ड्रेस से बहुत उलझन हो रही थी। कितना मना किया था वो ये वाहियात शेरवानी नहीं पहनेगा, मगर बाबा के हुक्म के आगे इसे मानना ही पड़ा था। 12 बजे से पहले ही रुखसती अमल में आ गई थी। तायशा सबको अफसरदा करके वहाज के मराइज के घर चली आई। रो रो के इसकी आंखों का मेकअप तो ख़राब भी हो गया था, मगर इसे इसकी परवाह भी नहीं थी। आमना इसे कितनी दफ़ा चुप करवाने की कोशिश कर चुकी थी। इन्हें क्या खबर थी तायशा को वहाज से डर लग रहा था, क्योंकि वह जितना सोबर और संजीदा था ये इसके लिए डराने को काफ़ी था। तुम आराम से बैठ जाओ और हाँ, ये जूस पूरा ख़त्म करना है। आमना ने इसे ज़रा प्यार भरी डांट पिलाई ताकि वो कुछ तो फ्रेश हो जाए। इधर वहाज को भी समझा रही थी और तायशा से नरम रवैया रखे। वो तो जाने क्या सोचे हुए था। तायशा ने ज़बरदस्ती जूस ख़त्म किया। रोहा तो इसके आने से पहले ही खुश थी। ज़बरदस्ती आमना ने इसे रूम से निकाला। तायशा का दिमाग थक गया था। बेडरूम बहुत खूबसूरत डेकोरेट था। अभी बनी भीनी भीनी खुशबू माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। काश वो मुझसे अच्छी तरह बात करें। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। इस दौरान वो आ गया था। तायशा संभली। दिल की धड़कनों में ताश पैदा हुआ। हाथ पैरों में सनसनाहट होने लगी। ऐसी कैफियत इस पर जब भी नहीं हुई थी जब पहली बार बोर्ड के एग्जाम में बैठी थी। दिल की धड़कनों की आवाज़ इसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वहाज ड्रेसिंग टेबल से बॉक्स उठा लाया। ये तुम्हारे लिए है। बॉक्स इसके आगे रखा। तायशा ने चौंक के मखमली बॉक्स पर नजर डाली जो उसके कदमों के पास रखा था। पहन लो। इसने गहरी निगाह तायशा के सरापे पर डाली जो सिर से पैर तक हुस्न में एकता लग रहे थे। और उसी रूप पर इस पर बहुत सज रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी महल की शहजादी हो जो अपने शाही तख्त पर टेक लगाए बैठी हो। तायशा ने हेलो हज्जत किए बगैर सादतमंदी का सबूत देते हुए बॉक्स में मौजूद तलाई कड़े हाथों में पहन लिया। वहाज ने देखा इसके हाथ पहले ही सजे हुए थे, अब कड़े हाथों में और सज गए थे। थैंक यू, बहुत प्यारे कड़े हैं। इसने मुस्कुरा के शुक्रिया अदा किया तो वहाज का सकता टूटा। आप चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं। जी अच्छा। तायशा समझ रही थी वहाज पहले इसे आजमाइश से गुजारेगा, फिर ही शायद इस पर प्यार भरी निगाह डालेगा। इसके दिमाग में तो यही होगा वो अपने रसाले टीवी ड्रामों से कुछ बाहर निकल ही नहीं सकती। ये सब भी इसे आमना ने बताया था। इस दिन से तायशा ने खुद को बदल लिया था और सब कुछ तरक करके इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। वो वहाज की सोच को बदलना चाहती थी जो इसके मतलब मनफी ख्यालात रखता था। वहाज की हर शर्त महरी को बर्दाश्त करेगी। वलीमे के बाद दावतों का सिलसिला चल निकला था, मगर वहाज रोज़ की दावतों से उकता गया था। फिर इसने सबसे ही माजरत कर ली थी। तायशा इसकी खुशी में ही सर हिला रही थी। ज़रा भी किसी बात से इख्तलाफ का पहलू नहीं निकालती थी। वहाज हैरान था क्योंकि इसने इसकी सगी खाला की दावत को रद्द कर दिया था। वो जानता था इसकी खाला ज़ात सारा इससे बहुत दोस्ती है, इससे ना मिलने का दुख तो होगा, मगर तो
मगर तायशा ने अपने किसी भी रद्द-ए-अमल से कुछ ज़ाहिर तो होने नहीं दिया। इसने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया था। मुकम्मल तौर पर वो सारे कामों पर तवज्जो दे रही थी। बाबा आज क्या पकाऊँ? इसने सुल्तान अहमद से पूछा। बेटा जो आसानी हो। उन्होंने तायशा को मुस्कुरा कर देखा। इन्हें कितनी बेफिक्री हो गई थी जब से इसने घर को संभाला था। अरे आपने ये क्या बात की? आप हुक्म तो करें। बेटा मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो खिला दोगी खा लूँगा। पसंद तो इन बच्चों की है, वहाद से पूछो या फिर फराज से। ये भी ठीक है। वो अपने आंचल को शानों पर बराबर करती हुई उठी। वह आज ऑफिस से 5 बजे आ जाता था, फिर वो कुछ देर आराम ज़रूर करता था। चाय देने के बाद इसके पास कहीं ही नहीं थी। रात खाने में क्या पकाऊं? इसने टीवी देखते वहाज को मुखातिब किया। वहाज की निगाह इस पर पड़ी। पिंक लॉन के खूबसूरत से प्रिंट के कपड़ों में इसकी सरको सफेद रंगत खिल रही थी, या फिर वो रोज़ बरोज़ खिलती जा रही थी। कितनी खुश और मुतमईन भी नजर आती थी। हालांकि वो इससे ठीक से बात भी नहीं करता था, मगर तायशा कभी भी इससे शिकवा नहीं करती थी। पकाना आता है या सिर्फ बातें बनानी आती हैं? ऐसे सख्त जहर लगते हैं। ऐ अपने से ख्यालात बांध रखे हैं तुमने। तंज में डूबा तीर ही फेंका। लहजे में तमस्खर भी था। तायशा लब कुचल के रहेगी। तायशा सूरी इसका नाम है। हालांकि इसे ये खुली तौहीन ही लग रही थी, मगर इसने खुद को नॉर्मल रखा। कितनी अजीब है, मैं इतना सुना देता हूँ मगर आगे से जवाब ही नहीं देती। बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। वो गहरी सोच में था। टीवी के चैनल सर्च किए जा रहा था। कड़ी। इसने जान के ऐसी डिश बताई कि ज़रूर इसे पकानी नहीं आती होगी, और फिर मुश्किल भी तो होती है। इसने अक्सर अम्मी को ही देखा था। वो सुबह से पकाने रख देती थी, जब कहीं जाके वो तैयार होती थी। जी अच्छा, इसने सर हिलाया। और हाँ, चावल सादे पकाना, रायता सलाद और थोड़ी कड़ी कीमे वाली भी पकाना। मैंने पकौड़ों वाली खाई है, कीमे वाली कभी नहीं खाई। इसने अपनी मुंतक डालनी होती है। इसने फिर लंबी लिस्ट ही बताई। तायशा कीमा वाली कड़ी पर चौंकी ज़रूर थी। इसने ये पकाई तो नहीं थी, और इसके सामने ये ज़ाहिर भी नहीं करना चाह रही थी वो डिश से नावाकिफ़ है। थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो बस इतना ही बोली। पकाना तो आता है ना ये सब। वजह से तायशा को टटोल रहा था। वो हिचकिचा के मना ही करते कि हर चीज़ पकाने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर मुश्किल नहीं होती। वह गहरी सोच के साथ ज़ुमैनी लहजे में गोया हुई। वह आज ने चौंक कर इसके तासरा देखे, मगर वो तेज़ी से जा चुकी थी। वह आज मौका के इंतजार में था। इसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि तायशा ये सब नहीं कर सकेगी। इसने टाइम देखा, 6 बज रही थे, और लेटा रहा। इधर तायशा ने जल्दी से दही निकाला, और दही दूध वगैरह पहले से ही फ्रिज में फ्रीज रखती थी, क्योंकि दोपहर में रायता ज़रूर बनता था। वो किचन में लगी हुई थी। रोहा कोचिंग से आ के इसके पास है। इसने हेल्प का कहा तो तायशा ने इसे मुस्कुरा कर किचन से बाहर भेज दिया। जिस वक्त कढ़ाई के पकौड़े बना रही थी, आई थिंक कड़ी के, फराज खुशबू से अंदर आ गया। भाभी 2-3 ले लूँ? वो पूछने लगा। हाँ ले लो, और प्लीज़ किचन से चले जाओ, मैं जल्दी कर लूँ। वो काउंटर पर कड़ी की देगची या देचकी, मतलब लाइक इधर पता नहीं अब सिस्टर ने कैसे लिखा है। मैंने ये वर्ड, मतलब लाइक हम तो पंजाबी में बोलते हैं। मैं पकौड़े डाल रही थी। ये कौन सी डिश है? फराज ने दूसरी फिर देचकी होगा इधर दूसरी मिनट पर उसने ऐसे लिखा है। का ढक्कन हटा के देखा। ये नई डिश है, इसने बताया। मुझे तो कीमा भी नज़र आ रहा है। वो चक्के देखने लगा। तायशा ने 9 बजे तक सब कुछ ही रेडी करके टेबल पर लगा दिया था। मशीन फिट थी इसमें। और वहाज ने जब हैरानगी से ये सब देखा तो इसकी बसारत यकीन ही नहीं कर रही थी। और मेरा दिमाग। सुल्तान अहमद ने तो कड़ी की बहुत ही तारीफ़ की। रोहा भी इतने दिन बाद ऐसे मज़ेदार खाने से बहुत ही खुश थी, क्योंकि रोज़ इसे नए से नया खाने को मिलता था। वहाज की सोच के घोड़े इस बात पर दौड़ते रहते थे किस तरह भी तायशा को जिच करके रहेगा, मगर तायशा का लगता था स्टेमिना ज़्यादा था। एक दिन वहाज ने इसे गोया लिस्ट ही बता दी थी। वो सुन के सकते में तो आई, मगर फ़ौरन नहीं संभल गई। मेरे दोस्त है, शादी की ट्रीट मांग रहे हैं, इसलिए सोचा घर पर खाने पर बुला लूँ। तुमसे लगता है होगा नहीं ये सब? इसकी सूरत देखकर छठ बुला जो खामोश खड़ी थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये सोच रही थी कि मीठे में रबड़ी भी रख लें। रबड़ी? वो तो हैरानगी से बोला, क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रहा था। रबड़ी मैं बना सकती हूँ। तायशा ने पुरजोश लहजे में मुस्कुरा कर से देखा, जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, और साथ ही इसने तायशा को आज की दावत का मेन्यू भी बता दिया था। तुम बना लोगी इतना कुछ खाने के मेन्यू साथ? मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ढंग का पका सकती हो। तुम्हारे रसाले और ड्रामों का क्या हुआ? इसने फिर तमस्खर उड़ा के तंज किया। जहर लग रहा है अभी मुझे। रसाले ड्रामे मेरे शौक थे फारिग औकात के, और मैं बताएं, वक्त की जमा औकात होता है ना, लाइक वाव पढ़नी होती है कि नहीं पढ़नी होती। हम अपनी उर्दू सुधार रहे हैं भाई। और मैं समझती हूँ रसाले ड्रामे इस वक्त हों जब फारिग हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम यहाँ के बेसहार होगी हो, तुम्हें तुम्हारे शौक पूरे करने का भी वक्त नहीं मिलता। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं इन चीज़ों का, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वेट अ सेकंड गाइस, मैं इधर उधर देख लूँ कोई चीज़ मुझे आकर लड़ ना जाए। इसे वहाज की सोच पर अफसोस और दुख बहुत होता था, जो हर वक्त इससे डिग्रेड ही करता था। इतना रूखा और सर्द महर था कि किसी के जज्बात की कदर ही नहीं थी। किन चीज़ों का मतलब? वहाज की इस्तफामिया निगाहें इस पर थी, जो
ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ठीक कर रही थी, जो रसाले ड्रामों की प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शायद आप नहीं समझ रहे हैं। वो मायनी किसी से कहती हुई बाहर निकल गई। वह आज इसकी गहरी बात में उलझ गया। वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। बाबा को पहले सलाम करके निकलता था। बेटा, आज तुमने दावत रखी है? जी बाबा, वो सारे दोस्त ट्रीट मांग रहे थे, इसने बताया। तायशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। रोहा तो नाश्ता करके पहले ही निकल गई थी। तुम किसी होटल में ट्रीट दे दो, इतने सारे खाने पकाना तुम्हें पता है? एक बंदे का काम नहीं। वो तो हैरान थे। तायशा ने सामान लाने की लिस्ट दी थी। इसका मतलब है बाबा से आकर बोल दिया, मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं। वो नाश्ता करने बैठ गया था। तायशा की नखियों से इसे देखने लगी। आपकी बहू के बस का काम नहीं है, जाहिर है कभी दावतों का खाना पकाया नहीं होगा, इसने तंज किया। अरे इसने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो तो उल्टा ये बोल रही है सब पका लूंगी। बेटा सोचो, तुमने कितनी डिशेस बता दी। बाबा परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं सब कर लूंगी। वह आज के बिगड़े तासरात देख रही थी। ठीक है, मैं होटल में अरेंज कर लेता हूँ, वो खुफकी से बोला। एक गहरी निगाह सोच लो, आई थिंक ऐसे कुछ सोचो। एक गहरी निगाह इस पर डाली। सुल्तान अहमद वहाज को सोच समझ रहे थे। वह जैसे तायशा का इम्तिहान लेना चाह रहा था, करती है या नहीं। वहाज के जाने के बाद तायशा ने सबसे पहले हाल कमरे की सेटिंग करवाई। इसके जहेज की डाइनिंग टेबल लाउंज में थी। इसे हाल कमरे की डाइनिंग टेबल से मिला कर रखवा दिया, क्योंकि वहाज के 4 दोस्त अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे थे। हाल कमरे में पड़े सोफे भी सेटिंग से रखे और पूरे घर की सफाई इसने मासी के साथ मिलके की। जब तक बाबा सौदा वगैरह ले आए थे, आज इत्फाकन फराज कॉलेज नहीं गया था। तायशा को कुछ हेल्प मिल गई थी। इसने मुर्ग मुसलम को मसाला वगैरह लगा के रख दिया था। बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लिया। कबाब का कीमा चढ़ाया हुआ था। मीठे में इसने 2 ही डिशेस तैयार किए थे। पूरा दिन इसका तमाम हो गया था। वह आज 5 बजे घर आया तो उसने हैरानगी से हाल कमरे की सेटिंग देखी और किचन से इश्तिया अंगेज खुशबू से भूख ही चमक उठी थी। तकरीबन इसने पकाने का सारा ही काम कर लिया था। सिर्फ बिरयानी की तय लगानी थी और कबाब भी तल के रख लिए थे कि जैसे मेहमान आएंगे माइक्रोवेव में गर्म करके ले आएगी। आई थिंक वाह, ये तो इतनी फुर्तीली है, सभी कुछ कर लिया। किचन का जायजा लेकर वो रूम में आ गया। डाइजेस्ट की हीरो है भाई, किधर? तायशा नहा के निकली थी। पिंक एम्ब्रॉयडरी के सूट में वो खिली खिली लग रही थी। इसने निगाह चुराई और अपने जूते मोजे उतारने लगा। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके हैंगर कर दिए हैं, आपका जो दिल चाहे वो पहन ले। बालों में वो ब्रश चला रही थी जब तक वह आज नहा के फ्रेश हो गया। जिस वक्त वो नहा के निकला इसके लिए चाय ले आई। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, इसने जताया। ये तो खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा पका है। वो जैसे इसके काम से ज़रा भी मरऊब नहीं हुआ था। तायशा ने सब कुछ शबनम भाभी से फ़ोन पर पूछ के तैयार किया था। इसे पकाना तो आता था, मगर कमी बेशी की वजह से पकाते हुए डर रही थी। वो चुपचाप चली गई। 9 बजे मेहमान आ गए थे। एक रौनक ही लग गई। इनके साथ बच्चे भी थे जो रोहा के साथ लग गए थे। सुल्तान अहमद इनसे सलाम दुआ करके अपने रूम में चले गए थे। तायशा ने सब कुछ अकेले किया था। सबको ये इंतज़ाम इतना पसंद आया था, बार बार तारीफ़ें किए जा रहे थे। वह आज खुद भी से निगाहें चुराए हुए था। सबके जाने के बाद इसने सारे बर्तन खुद धोए, किचन भी साफ़ किया। रोहा ने बर्तन सारे खुश्क करके डाइनिंग टेबल पर रखवाए थे। इसे ये सब करते करते 2 बज के थे। वह आज इसकी खूबियों का कायल हो गया था। जिस वक्त वह रूम में आई वह आज लेटा हुआ था। वो चेंज करने बाथरूम में चली गई थी। वह आज अहमद, तुम अगर ज़रा सी मेरी हौसला अफजाई करते थे तो क्या हो जाता? वो लेटी तो सोचो ने इसे घेर लिया था। वह आज की रुखाई पर बहुत दुखी थी। अव्वल रोज़ से ही वह इससे फासलों पर था। इसके पुष्ट पर निगाह टिकाई हुई थी। कितना बदतमीज़ है ये बंदा। रोहा के मैट्रिक एग्ज़ाम हो रहे थे। वो इसकी भी पढ़ाई में मदद करी थी। कोचिंग तो वो जाती ही थी, मगर अपने तौर पे भी तायशा इसकी भी तैयारी करवा रही थी। भाई ये 2 पेपर भी खैरियत से गुजर आई थिंक भाभी ये 2 पेपर भी खैरियत से गुजर जाएंगे, फिर मैं फूफो के घर रहने जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना। इसने रोहा के सर पर चिपक लगाई। तुम जल्दी जल्दी ये सब याद करो, मैं जब तक देख के आती हूँ। मशीन में कपड़े डाले थे। मशीन ऑटोमेटिक थी, ज़्यादा झमेला तो होता नहीं था। वो कपड़े घर के सारे खुद ही धोती थी। कई दिनों से वो बोर भी नहीं आई थिंक घर भी नहीं गई थी। हालांकि सबसे मिलने का कितना दिल कर रहा था, मगर घर की मसरूफियात की वजह से जा नहीं सकी थी। रोहा के एग्ज़ाम भी हो रहे थे। अगर ज़रा भी बेपरवाही बरती तो वहाज को तो मौका मिल जाना था इसे सुनाने का। वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी। सारे कपड़े धुल गए थे, इसने फैला भी दिए थे। 4 बज गए थे। रात का खाना भी तैयार करना था। बाबा अपने कमरे में थे। इनके लिए पहले चाय बनाई। रोहा कोचिंग के लिए तैयार हो गई थी। भाभी आज कीमा आलू पका लें। ठीक है देखती हूँ, वो बोली। आज इसकी कमरे में बहुत दर्द हो रहा था, दिल कर रहा था लेटी रहे, और वही हुआ। कुछ देर सुस्ताने के लिए लेटी तो इसे पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। चल भाई, अब देखना वो कैसे बदतमीजी करता है। मगरिब की अजान हो रही थी। जब आँख खुली देखा तो वह आज भी साथ ही लेटा था। ओ इतनी देर होगी। वो हड़बड़ा के उठी। वह आज की तनकीदी निगाहों ने इसका जायजा लिया। रेड लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में जाने क्यों आज वो इतनी मुरझाई लग रही थी। सर चकरा रहा था। जैसे ही खड़ी हुई चक्कर से आ गया। फौरन ही बैठ गई। आराम करो तुम, क्योंकि सारा काम तो हो ही गया है, इसने तंज किया।
کام؟ مجھے ایسے سمجھی نہیں۔ بابا نے رات کا سالن پکا لیا ہے، روٹیاں بھی خود ہی باہر سے لے آئے ہیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ بابا واقعی کچن میں ہی تھے۔ بابا آپ نے کیوں پکایا؟ میں آ رہی تھی، کپڑے دھونے کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، آج میرا خود دل چاہ رہا تھا پکانے کا۔ وہ سنک میں پڑے برتن دھونے لگے۔ ہٹے، یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ اٹھا دیتے، تم خود دھیان رکھتی۔ ایسے کیسے بے وقت سو گئی؟ وہ آج کو تو موقع مل گیا تھا اسے ستانے کا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ آج پہلی بار، پھر دوسری بار۔ لگتا ہے گھر کے کاموں کی تمہیں عادت نہیں ہے۔ وہ آج کیا بدتمیزی ہے، یہ بھی انسان ہے، پورا دن لگی رہتی ہے، اگر کچھ دیر سو گئی تو کیا ہو گیا؟ بابا نے اسے ڈانٹا تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ برتن دھوتی رہی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کچن میں لگے ہوئے تھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی نوکرانی بن کے نہیں آئی ہے، اس کا گھر ہے، کبھی دیر سویر میں کام کر لیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اور میں نے آج پہلی دفعہ تو کھانا نہیں پکایا، اکثر پکا ہی لیتا ہوں۔ بابا وہ پہلے کی بات تھی، وہ چیخا۔ آئی تھنک آپ نے میری شادی اسی وجہ سے کروائی تھی، آپ کو نوکرانی چاہیے تھی؟ عائشہ نے ایک دم ہی رخ پھیر کے پوچھا۔ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم میری بیٹی ہو۔ بابا تو گڑبڑا ہی گئے۔ بابا میں نے اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھا ہے اور ہر کام خوش دل سے کرتی ہوں، مگر جانے کیوں انہیں مجھ سے ہر وقت شکایت رہتی ہے، ہر وقت ہی روڈ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں رسالہ اور ڈراموں کی دنیا میں رہتی تھی؟ وہ سب تو میں کب کا چھوڑ چکی ہوں، ضروری ہے کہ ہر وقت مجھے اس بات کا تانا دیا جائے؟ میری کوئی اہمیت اور عزت نہیں؟ وہ تو روحانسی ہوگی، وہ آج بہت شرمندہ ہو گیا تھا، اور وہ جو کچھ کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میری امی اور بھابھی نے مجھے ہر کام سکھایا ہے، میں نے ہر کام ٹھیک طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، جب میں ان کے معیار پر نہیں اترتی تو آپ کو یہ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، ختم کرے اس رشتے کو۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ دل تو ٹوٹ ہی گیا تھا، وہ آج کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، مگر وہ ہر وقت اسے ناگواری اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ صحیح بات ہے، انسان ہے، کب تک برداشت کرے؟ دیکھو ناراض کر دیا تم نے اسے، تانے دیتے ہو۔ ارے ساری لڑکیاں شادی سے پہلے یہ سب شوق رکھتی ہیں، تمہاری بہن کو شوق نہیں ہے کیا ٹی وی ڈراموں کا؟ سوچو۔ بابا اسے شرمندہ کرنے لگے، وہ آج لب کچلنے لگا۔ عائشہ تو ایک دم ہی رشتہ ختم کرنے کی بات کر گئی تھی، اور آمنہ کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، پھوپھا جان کو علم ہوگا تو کتنی سبکی اور شرمندگی ہوگی۔ وہ عائشہ کو تانے دیتا ہے، جانے کیوں اتنا روکھا اور سرد مہر ہو گیا تھا، ہر وقت ہی جھنجھلایا اور بیزار رہتا تھا، جبکہ اس کے آنے سے تو گھر لگنے لگا تھا۔ ان 2 مہینوں میں تو اس نے سب کچھ اپنی بہت ذمہ داری سے کیا تھا۔ اس کے دوستوں کی دعوت میں اس نے سب کچھ ہی خود پکایا تھا، سارے دوست تعریف کر رہے تھے۔ یار بھاج، تم تو خوش نصیب ہو جو اتنی سگڑ بیوی ملی، کتنے مزیدار کھانے پکاتی ہے۔ عرفان نے کھلے دل سے سراہا تھا، اس وقت اسے کتنی خوشی ہوئی تھی۔ عائشہ نے مہمانداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سب کچھ ہی سلیقے طریقے سے کیا تھا۔ جاؤ جا کے دیکھو، وہ رو رہی ہوگی۔ بابا کی آواز پر وہ چونکا۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم نے مزید حماقت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان احمد کو غصہ آ گیا تھا تو عائشہ روم میں نہیں تھی، اس نے دوسرے کمرے میں دیکھا، وہ روحا کے روم میں مل گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے، کسی اپنے مطلب کی لڑکی سے شادی کر میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اپنی اتنی تضحیک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سوچ لو تم کیا کہہ رہی ہو، اور پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ سب تم پر رسالے ڈراموں کا ہی اثر ہے۔ اس کی میں نے سنگیت بات نہیں ہے جو ایسے ڈائلاگ بول رہی ہو، اور جانتے ہو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے ڈرائے نہیں، اور میں ڈر بھی نہیں رہی، آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، رشتہ ختم کرے۔ وہ آج کی بات پر وہ اور ہی بنا کی، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں یہاں رہ رہی تھی صرف آپ کے لیے، مگر آپ کو تو میرا احساس ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیسا احساس چاہتی ہو؟ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھتا تھا۔ میں خزی سے بولا، احساس کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جو چاہتی ہو وہی صحیح۔ وہ پھر بولا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا، اسے دیکھ ہی رہا تھا، اپنا چہرہ اس نے دوسری طرف گھمایا۔ روم میں آ جاؤ، جو احساس چاہتی ہو کرا دیتا ہوں۔ وہ بات کو گھمانے لگا کیونکہ ڈر بھی تھا، اگر یہ چلی گئی تو بابا اور پھپھو تو اسے چھوڑیں گے نہیں، تو اسے روکنا تھا۔ عائشہ سے چھو گئی، اٹھی اور باہر نکل گئی تھی۔ اوکے جی، وہ مان ہی نہیں رہی تھی کسی طرح بھی۔ دوسرے دن سے واقعی بخار ہو گیا اور اس نے گھر جانے کی ضد لگا دی۔ مجھے پورن بھاج کو چھوڑ کے آنا پڑا، مگر اس نے بھاج سے مکمل ناراضگی اور خوف کی رکھی ہوئی تھی۔ بیماری کے بہانے ہی تو تم آئی یہاں رکنے۔ شبنم بھابھی نے اس کے آنے سے بہت خوش تھی۔ بھابھی مجھے یہ بھاج احمد ذرا سمجھ نہیں آیا، وہ ایک دم بولی۔ سارے ہی مرد سمجھ نہیں آتے، تمہارے بھائی جان بھی مجھے سمجھ نہیں آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سمجھ گئی جب صبور اس دنیا میں آیا۔ انہوں نے مانی خیزی سے اسے چھیڑا۔ بھابھی کیا ہے؟ وہ چنپ گئی۔ دیکھو تم بھاگو، اتنا سیریس نہیں لو، ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا تم یہاں رہو گی تو خود ہی دوڑا تمہیں لینے آ جائے گا۔ وہ بولی، پتہ نہیں۔ وہ حسرت بری آ بھر کے رہ گئی۔ زیادہ اداسی کا بھوت نہیں سوار کر، تم آئی ہو تو کچھ دن تو رک کے جاؤ گی، ہم لوگ شاپنگ کر لیں گے عید کی اور رمضان کی۔ مجھے لون وغیرہ کے سوٹ لینے ہیں۔ ہاں میں نے تو
हाँ लेने तो मुझे भी हैं। तायशा कब से सोच रही थी बाजार जाने का, मगर इस वक्त ही नहीं मिल रहा था। 1-2 दिन में इसका बुखार तो ठीक हो गया, रोहा के एग्जाम खत्म हो गए थे, वो भी यहीं आ गई थी। फिर शबनम भाभी के साथ जाके अपने लिए रोहा के लिए कपड़े लिए ईद के लिए भी अभी ही ले लिए। पैसे तो उसके पास थे ही। भाभी ऐसी शॉपिंग तो मेरे बाबा और भाईजान ने भी नहीं करवाई जो आप और पुप्पो ने करवाई है। रोहा खुश हो रही थी। रोहा तुम्हारा सूट बहुत खूबसूरत है, निमरा को इसके कपड़े बहुत पसंद आए थे, मैंने फराज के लिए कमीज शलवार सिंपल सा लिया है, तायशा ने बताया। और बाबा और भाई से आपकी दुश्मनी है? बाबा का कमीज शलवार का कपड़ा लिया है और तुम्हारे भाई जान के लिए मैं खुद जान के नहीं लिया, पसंद ही नहीं आएगा, तायशा ने बताया। ठीक है, वो वैसे भी हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। रोहा वहाज की आदत को अच्छी तरह जानती थी। चलो भाई सामान समेटो, खाना लग गया है, आ जाओ। तायशा वहाज भी आया है, शबनम भाभी ने बताया। ये क्यों आ गए? वो मुंह बना के सोचने लगी। इसने सारे शॉपर साइड पर रखे और खुद बाहर आ गई। वहाज को इसने जान के इग्नोर किया। रोहा निमरा के साथ लगी हुई थी, खाना लग चुका था। मुईद साहब और मुनीब और महब भी वहाज को खास अहमियत दे रहे थे, जबकि इसने खाने के वक्त किसी भी चीज़ का इससे नहीं पूछा था। वहाज इसकी नाराज़गी समझ रहा था। अबू बुला रहे हैं। वहाज ने मौका देख कर इसे मुखातिब किया। वो लाउंज में बैठी थी। अबू से कहें वो किसी दूसरी बहू का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि इनके बेटे के मेयार पर मैं नहीं उतर रही, इसने तंज़ो नागवारी से कहा। देखो यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं, वो दबी दबी आवाज़ में से डांट रहा था। मैं कोई तमाशा नहीं लगा रही। वो खड़ी होगी। शबनम भाभी इतने में कोल्ड ड्रिंक ले आई तो वो दोनों ही खामोश हो गए। इतनी आहिस्तगी और सरगोशी में क्या बातें हो रही थी? शबनम भाभी ने मायने खेसी से पूछा। भाई वो झगड़े थे, हर वक्त ही ऐसा लगता है जैसे रोमांटिक बातें कर रहे हैं, कुछ खास नहीं। तायशा जिनब के बोली और ट्रे से ग्लास उठाकर वहाज को थमाया। तुम नहीं पियोगी? नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं करा, आप रोहा को ज़रूर दीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी नंद को मैं भूल सकती हूँ, शबनम भाभी मुस्कुराती हुई बोली। वहाज कोल्ड ड्रिंक के सिप लेने लगा और इसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया तुम यहाँ आके बैठी हो। बाबा की फिक्र है? मुझे सबकी फिक्र है, आपको जब मेरी फिक्र और ज़रूरत नहीं तो मुझे क्या पड़ी इस रिश्ते को आगे लेके चलने की? सारी ज़िंदगी आपके ताने सुनती रहूँ? वो मुकम्मल इससे बाइकआउट की हुई थी। इसने आई थिंक तहिया कर लिया था, वहाज से अपने लिए इकरार करवा के रहेगी। वो इसके लिए अहमियत रखती है या नहीं? वो इतने खुरदरे लहजे और शख्सियत का था। तायशा चाहती थी इसकी शख्सियत में भी रंग आए, मगर वो अपने दायरे से निकल ही नहीं रहा था। देखो बाबा चाहते हैं तुम रमज़ान से पहले घर आ जाओ, बाबा चाहते हैं, आप तो नहीं चाहते। मुझे नहीं आना। वो भी डटी हुई थी। क्यों आओगी? तुम्हें यहाँ से साले ड्रामे जो देखने को मिल रहे हैं, इसने फिर तंज किया। ना ही जाओ कम वक्त कहीं का। तो तायशा तो सुलग ही रह गई। वो दुख से इसे देखने लगी जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। वो तंग के उठ के चली गई। वहां जिसे पुकारता ही रह गया और वो ये जा बोझा हो गई थी। इसे गए हुए 19 दिन हो गए थे। घर की हालत ही बदल गई थी। 19 ही लिखा हुआ है, अलिफ ने डाला। और खुद वहाज की भी हर चीज़ वो इसके सामने तैयार रखती थी। किसी भी चीज़ का इसे कहना नहीं पड़ता था। इसके कपड़े से लेकर खाना पीना तक बेतरतीब हो गया था। इसने 3 महीनों में इन सबको अपनी आदत ऐसी डाल दी थी कि किसी का कुछ खुद से करने का दिल ही नहीं करता था। हालांकि इसकी शादी से पहले भी घर चल रहा था, मगर अब वो सब हो ही नहीं रहा था। बाबा किचन में खाना पकाते नजर आते थे। आमना भी 2-3 बार आ चुकी थी, मगर बाबा ने असल बात से इन्हें आगाह नहीं किया था, और ना ही इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ था कि तायशा ने ऐसा कुछ वहाँ कहा है। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो नहीं आ रही, मैं खुद जाके ले लाऊंगा। सुल्तान अहमद को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इनकी बहू रूठ के मैके जा बैठी हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? लेने गया तो था, खुद नहीं आई। बाबा इसे आना ही नहीं, वो किसी आया हुआ बेजार था। वो आएगी नहीं तो हम क्या इसे वहीं छोड़ देंगे? वो इसे सख्त से सुना रहे थे। वहाज बहुत बदमज़ा सा हो गया था। वो दिल में इसे जगह दे चुका था। वो इसके दिल में उतर गई थी। साथ रहते रहते वो इसकी खुशबू का, इसके वजूद का आदी हो गया था। ऐसे कैसे जल्दी इसका आदी हो सकता है? इस लड़की को वो सख्त नापसंद करता था। वो यूँ अचानक से इतनी करीब हो गई थी और इकरार करते हुए इसे इतनी झिझक और आर क्यों महसूस हो रही थी? शायद इसी वजह से वो इतना झुंझलाया और बेजार रहने लगा था। इसी तरह तो वो शादी से पहले भी नहीं था। मैं खुद जाऊँगा, तुम तो बेवकूफ़ी करते रहना। वो समझ गए थे वहाज अपनी अना की वजह से तायशा के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और वो इसकी बेवकूफ़ी में इन दोनों का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। बाबा कोई फ़ायदा नहीं है, वो अकर दिखा रही है। अकर तो तुम भी दिखाते हो, तुम्हारी बीवी है, कुछ तो असरात तुम्हारे इस पर पड़े ही होंगे। वह आज जज्बस होकर पहलू बदल के रह गया था। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बाबा को ज़्यादा ही जल्दी थी। वो तैयार होके आगे थे। मैं चलूँ? इसने झट अपनी खिदमात पेश की। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फराज को लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी की चाबी दो। वो खासे संजीदा और फिक्रमंद लग रहे थे। गाड़ी ध्यान से चलाना। वहाज ने चाबी इसके हाथ में थमाई। रोहा को तो ले आइएगा, वो भी वहीं जाके जम गई है। हाँ ले आएंगे। बाबा ने इसका सता हुआ चेहरा देखा। वो भी खूब समझ रहे थे तायशा की वजह से खुद भी बहुत परेशान है, मगर अपनी परेशानी कहना इसकी अना के खिलाफ था।
عجیب لڑکی ہے، اتنے عرصے میں ان سب کو اپنا عادی بنا لیا اور تو اور میری بہن کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ ٹانگیں پھیلا کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، ٹی وی اس نے آن کر لیا تھا، وہ بے چین تھا اور اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا کہ وہ آ جائے۔ کتنا ڈھیٹ بندہ ہے دیکھ لو۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے 11 بج گئے تھے، اسے اکتاہٹ ہوئی، ٹی وی آف کیا اور کچن میں کھانے کی تلاش میں آیا۔ وہاں گندے برتن کا جمع غفیر تھا، وہاں کا پھیلاوا دیکھ کر اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس دوران ڈور بیل ہوئی، دل کو خوشی کا احساس ہوا، شاید وہ ساتھ آ گئی ہو۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، پوچھ میں آیا، گیٹ کھولا تو ان سب کے ساتھ وہ بھی کھڑی دکھائی تھی۔ سکون مل گیا، تھینک گاڈ آپ لوگ آ گئے، ہم یا بھابھی؟ روحا نے ہنس کے اسے چھیڑا۔ فراز نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی، تائشہ پیریٹ گرین کپڑوں میں اسے خوفکی دکھاتی اندر چلی گئی تھی۔ کوئی فضول بات اس سے نہیں کرنا، صرف میرے کہنے پر آئی ہے، شکر کرو تمہیں بیوی اچھی ملی ہے، بڑوں کی عزت و قدر کرتی ہے، اس نے میری بات رکھی ہے۔ جو آ گئی وہاں کسی کو نہیں پتا تھا تم نے کیا حرکت کی ہے، میں نے آمنہ کو تمہاری کارگزاریاں بتا دی ہیں، وہ آئے گی تمہاری خبر لینے۔ بابا نے اسے اچھی طرح سے سنانے کے بعد آخری بات یہ بتائی۔ پھپھو کو بتا دیا؟ اسے ڈر بھی ہوا کیونکہ پھپھو تو اس کی خبر اچھی طرح لیں گی۔ جاؤ اور آرام کرو، انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ تائشہ کپڑے چینج کر کے کچن میں چلی گئی تھی، وہاں سے اسے برتنوں کی آوازیں آنے لگی۔ سب بیٹا صبح ماسی آئے گی، اسے دھلوا لینا۔ بابا شرمندہ بھی ہو رہے تھے، کچن میں اتنا کچھ جو پھیلا ہوا تھا۔ بابا میں ابھی خود دھو لوں گی، اب پریشان ہی ہو، انہوں نے مسکرا کر اس نے مسکرا کر انہیں مطمئن کیا۔ وہ آج کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے سے وہ کچھ بولے، وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ تو آ گئی تھی مگر وہ ہاتھ سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اس نے بکھرا ہوا پورا گھر ایک دن میں سیٹ کر لیا تھا، میلے کپڑوں کا بھی ڈھیر لگ گیا تھا، وہ بھی اس نے ایک ہی دن میں دھو کے نپٹائے۔ ماسی سے پورا پورچ دھلوایا، دن ٹھیکے پر لگا کے اٹھ رہے تھے۔ اس نے بابا کے اور بھاج کے کپڑے ٹیلر کو سلنے دے دیے تھے، وہ بھی منیب کے ذریعے یہ کام اس نے انجام دیا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا وہ دہی بڑے شوق سے کھاتا ہے، اس نے پہلے سے ماش کی دال کے دہی بڑے بنا کے فریز کر دیے تھے، بس گرم پانی میں ڈال کے نرم کرنے تھے، وقت پر پھر دہی میں ڈال دیے جانے تھے۔ یہ بھی اسے شبنم بھابھی اور امی سے سیکھے تھے۔ امی نے ہمیشہ اسے یہی نصیحت کی تھی، اور کام کو پہلے سے کر لو تو وقت پر پریشانی نہیں ہوگی، بیٹا تم پورا دن لگی رہتی ہو، کچھ آرام بھی کر لو۔ سلطان احمد کو یہ خوشی تھی، اس نے ان کا مان رکھا تھا، پھر سے اس نے خود کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ بابا آپ جانتے ہیں روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چل رہا بیٹا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، ورنہ گرمی تو دکھ رہی ہے۔ فراز آئی تھنک یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، آ کے لمبا لیٹ جاتا ہے، وہ تو اس دفعہ رمضان جون میں ہے تو فراز اور روحا کو آرام مل گیا ہے۔ وہ اسے عشاء کی نماز پڑھ کے اندر جاتے ہوئے روک کے بولے، اچھا ہے نا آرام سے سو کے اٹھتے ہیں۔ وہ مسکرائی، بابا آپ کو کس چیز کی ضرورت تو نہیں، میں قرآن پاک پڑھنے بیٹھ رہی ہوں۔ نہیں بیٹا آپ پڑھو، میں سونے جا رہا ہوں، سحری میں اٹھا دینا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، جی اچھا۔ وہ روم میں آ گئی، بھاج لیپ ٹاپ سینے پر رکھے نیم دراز اپنے کام میں مصروف تھا۔ نماز تراویح پڑھ کے وہ اپنے آفس کا کام لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئی، بھاج کی نگاہ بار بار اٹھ رہی تھی، بلو لون کے پرنٹڈ کپڑوں میں پاکیزگی لیے پڑی تھی۔ تائشہ کے چہرے پر مکاری اور بناوٹ نہیں تھی، وہ بہت سادہ تھی۔ بھاج نے اندازہ کر لیا تھا وہ اس گھر کے ہر فرد کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اس سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ جب سے اپنے گھر سے واپس آئی تھی تائشہ کے انداز میں اور زیادہ ٹھہراؤ آ گیا تھا، وہ اسے بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے پڑھنے کے بعد اس نے قرآن پاک رکھ دیا۔ وہ آج بھی اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا اور ایزی سے بلو قمیض شلوار میں ملبوس تھکا تھکا سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ سنو اگر اعتراض نہیں ہو یا تکلیف نہ ہو تو چائے بنا کے پلا سکتی ہو؟ تائشہ لیٹ چکی تھی، اس نے رخ موڑ کے اسے دیکھا جو اس کی جانب مکمل متوجہ تھا۔ آپ کو سحری میں بھی اٹھنا ہے؟ چائے 2 دفعہ آپ پہلے ہی پی چکے ہیں، اس لیے مزید نہیں پیے تو بہتر ہے۔ صاف کہو تم میرا کام کرنا نہیں چاہتی، یہی سمجھ لیں۔ وہ کروٹ لے کے لیٹ گئی، وہاں حیران رہ گیا، وہ اسے ایسے کیسے جواب دے سکتی ہے؟ وہ اسے جوش دلانے لگا، زیادہ چائے دماغ خشک کرتی ہے، میں صرف اس لیے منع کر رہی ہوں، ورنہ مجھے اعتراض نہیں۔ وہ ایک دم ہی اٹھ گئی تھی، کچھ ہی دیر میں چائے اس کے لیے بنا کے لے آئی تھی۔ میرا اب موڈ نہیں ہے تو وہ بھی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں اور کتنے امتحان لیں گے، کتنا سچ کریں گے؟ وہ تو سچ ہو گئی تھی، وہ آج لگتا تھا اسے جان بوجھ کے تنگ کر رہا تھا اور وہ رخ موڑے مسکرا رہا تھا، واقعی وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو، بتائیے تاکہ میں سمجھاؤں۔ ایک تو اتنی تھکن ہو رہی تھی، اوپر سے بھاج کے نخرے اور تیور اسے سلگانے کے لیے کافی تھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بحث کروں۔ چائے رکھی ہے، پینی ہو تو پی لیجیے گا ورنہ پڑی رہنے دیجیے گا۔ وہ لائٹ آف کر کے تنفن کرتی لیٹ گئی، بھاج جس کی جانب رک کر کے لیٹ گیا۔ تائشہ نے نیل کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو کروٹ ہی بدل لی۔ اگر شکل بری لگ رہی ہے تو کمرے سے چلا جاتا ہوں۔ شکل تو آپ کو میری بری لگتی ہے، وہ بھی ترکی بترکی بولی۔ اور بیا اونٹ پہاڑ کے نیچے 2 مرتبہ اس نے ضد کی، دونوں مرتبہ غلط تھی، پتہ نہیں کتنی بے عزتی کریں گے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی اور دانت پیستے وہ حاج نے اسے تپانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ اگر بات مزید بگڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بابا اور آمنہ پھوپھو کی وارننگ تھی، اپنے ازدواجی تعلقات سدھار لو ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کیسے وہ تائشہ سے بات کرے۔
15 रोज़े ऐसे गुजरे कि पता नहीं चले। इसके घर से भाभी महब भाई ईद लेके आए थे वहाँ, जो इसके कपड़े थे, रोहा का भी सूट था। बाबा को भी ख्याल आया कि इसकी भी तो पहली ईद है यहाँ, इसकी ईद की तैयारी तो अभी तक कोई हुई नहीं थी। भाभी आज बाज़ार चलेंगे, बाबा ने पैसे दिए हैं, रोहा ने से बताया। बाबा ने क्यों दिए हैं? अपने भाईजान से मांगती ना। तायशा ने इफ्तार के बाद चाय बनाकर सबके लिए ले आई थी। बेटा ये मुझसे अलग लेती है और वहाज से अलग, तुम दोनों ऐसा करो वहाज के साथ चली जाओ, शॉपिंग कराओ। बाबा मैं बाज़ार बिल्कुल नहीं जाऊँगी, वहाज जाऊँगा सॉरी। वहाज ने सुना तो इसने मुंह बनाकर साफ इनकार कर दिया। कोई क्यों भाई, क्यों बाजार नहीं जाओगे? अभी तक वही रूखे फीके हो। आमना अपने तीनों बच्चों समेत आई थी, सभी इन्हें देखकर खुश हो गए थे, मगर वहाज वो मोदब बन के बैठ गया था क्योंकि वैसे डांट फटकार के बगैर रहेंगी नहीं। चाय में चीनी तो डाल दिया कर, वो चीख के बोला। तायशा खफीफ सी होगी, चीनी अच्छी खासी ज़्यादा ही डाली थी, मगर वहाज को ज़्यादा मीठा पीने की आदत थी। वहाज बेटा आराम से, बीवी है ये तुम्हारी, कोई मुलाजमा नहीं। आमना को नागवार गुजरा तो वैसे टोके बिना ना रह सकी थी। फूफू आप बाजार चलेंगी, भाभी तो मना कर रही हैं। रोहा ने माहौल की तलखी अपनी आवाज़ से दूर की। वहाज तुमने अभी तक तायशा को ईद की शॉपिंग भी नहीं करवाई? फूफू आप आ तो गई हैं, आप ये काम सर अंजाम दे लें, मेरा मूड नहीं है जाने का। एक उसको मना रहा है, ऊपर से ऐसी हरकतें उसे डांट रहा है, ऐसे मानेगी हो? इसने साफ इनकार कर दिया। चाची जान मैंने पहले ही शबनम भाभी के साथ शॉपिंग कर ली थी, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आप रोहा को करवा दे बाबा से, इसने पैसे लिए हैं, जबकि मैंने इसकी भी ईद की पहले ही तैयारी कर ली है। तायशा ने तफसील से वजाहत के साथ बताया। वहाज ने इसके संजीदा चेहरे को देखा जो वाकई हद से ज़्यादा ही संजीदा होती जा रही थी। बेटा शादी के बाद की ईद की शॉपिंग का अलग ही मज़ा होता है। मज़ा? अगर मज़े में ज़िंदगी हो तो जब भी दोबारा भी होता है। मुझे वैसे भी काम है, आप ये बताइए खाना अभी लगा दूँ या बाद में? इसने फिर मौजू ही बदल दिया। सुल्तान अहमद को वहाज का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, जो तायशा के साथ अब भी तलख और तुर्श था। बेटा हम अफ्तारी ठीक ठाक करके आए हैं, खाने की गुंजाइश नहीं, अलबत्ता असफर और समीर से पूछ लेना, ये शायद खाएं। उन्होंने बताया। ठीक है। वो खाली कप उठाकर किचन में चली गई। आमना, रोहा और निमरा को लेकर बाजार चली गई थी। तीनों लड़कियों में से असफर को वह ज़बरदस्ती साथ ले गए थे। तीनों लड़कों में से आई थी। वहाज तो रोज़ा अफ्तार करने के बाद बिस्तर पर ही ढह जाता था। तायशा काम से फारिग हुई तो सारा की कॉल आ गई। वो रूम में आ गई थी। वह आज पता नहीं कहाँ चला गया था। इसने अपने सेल को उठाया और कान से लगाया। क्या रहती हो? सारा ने छूटते हुए पूछा। कहाँ होगी? अपने ससुराल में, वो बोली। वहाज भाई के साथ ईद की रोमांटिक शॉपिंग की। ये रोमांटिक बातें और रोमांस शादी के बाद कुछ नहीं होता, और मुझे समझ भी आ गया, ये सिर्फ रिसाला और फिल्मों की हद तक होता है, वरना प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं। लहजे में इसकी उदासी हसरत थी। वह आज वाशरूम से निकल कर बाहर आ गया था। तायशा की पुश्त थी, इसे वह आज की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। ये तुम कह रही हो जो मुझे देख देख के इश्क करती थी? सारों को इसकी बातों पर हैरानगी का झटका लगा। तुम्हारे साथ भी यही होगा। फरहान भाई अभी तुमसे रोमांस छाड़ते हैं, शादी के बाद सिर्फ डांट रिपीट सुनना, क्योंकि प्यार और मोहब्बत और रोमांस शादी के बाद कुछ नहीं होता। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ और अब मैं आदी भी हो गई हूँ। वह आज संजीदा है, ये इनका मिजाज है और आदत है जो मैंने कबूल कर लिया है। इसलिए कोशिश करती हूँ मैं भी अपने मिजाज में संजीदगी और बर्दारी रखूँ और कोशिश में कामयाब भी हूँ। वो बोल रही थी, मगर वहाज को लग रहा था वो रो रही है। इसे दुख ही मिला था वहाज के रूखे रवैये से। तायशा ये तू ही है ना? सारा को यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी डेट कब की फिक्स हुई है? तायशा ने आंखों की नमी हथेलियों से साफ की। ईद के दूसरे दिन मैं मायूं बैठूंगी, इसने बताया। वह आज वहाँ से खामोशी से निकल कर बाहर आ गया। इसे आज एहसास हो गया था तायशा ने खुद को यहाँ आके इसके मिजाज में बदल लिया था। जो चाहता था वो वही करती थी, मगर इसने तो तायशा को कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ ताने दिए थे। इसका प्रमोशन हो गया था, वो कितना खुश था। जल्दी ऑफिस से निकल आया था। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ गई थी। इसने बड़ी मुश्किल से तायशा के लिए एक सूट खरीदा और कुछ कपड़े रोहा, फराज और बाबा के लिए भी लिए थे। पहली दफ़ा इसने खुद से कोई शॉपिंग की थी। घर आते हुए भी झिझक भी रहा था। आमना फूफ के ज़बरदस्त डांट और कुछ तायशा की शख्सियत का असर था। इसमें हैरान कन तब्दीली आ गई थी। भाईजान वाओ, सूट तो आप बड़ा ज़बरदस्त लाए हैं। रोहा अपना स्टाइलिश शॉपिंग सूट देखकर हैरानो अनबसात में मुब्तला होकर बोली। शुक्र है, पसंद आ गया। इसने तशक्कुर भरा सांस लिया। भाईजान आपका प्रमोशन हुआ है, आप खाली सूट पर नहीं ठिठका सकते, कुछ रकम भी खर्च करें। फराज ने अपने भी कपड़े देखकर कहा था। तायशा ने एक दफ़ा भी हाथ लगा के कुछ नहीं देखा था। सुल्तान अहमद समझ रहे थे वो हाथ से हनूज नाराज़गी और की रखे हुए हैं। मेरी बहू के लिए कुछ लाए हो या नहीं? आपकी बहू को फुर्सत ही नहीं है कि वो आके देख ले। इसने तायशा पर निगाह डाली जो सेल पर मैसेज करने में लगी हुई थी, या फिर जानबूझ के खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। बाद में देख लूँगी, अभी मुझे काम है। भाईजान भाभी मुकम्मल आपको इग्नोर कर रही है, फराज ने सरगोशी में कहा। हाँ यार, इसे खुद पर ही गुस्सा था, इसकी वजह से ही वो ऐसा कर रही थी।
اب دیکھو کیسے کہہ رہا ہے، بیٹا تم اندر کمرے میں لے جاؤ، یہ سب تو عائشہ خود دیکھ لے گی۔ بابا نے وہاج کے شانے پر تھپکی تھی۔ بھائی جان میرے شوز تو رہ ہی گئے۔ روحا کو اپنے شوز کی فکر ہوئی، لے لینا، وہ بھی تم چھوڑو گی کب؟ اس نے سارے شاپرز اور ڈبے اٹھائے، وہ حال میں ہی سب کچھ پھیلا کے بیٹھ گیا تھا۔ اندر آیا تو وہ کپڑے وارڈروب میں رکھ رہی تھی، دھونے کے بعد کپڑوں کی ان کی جگہوں پر رکھنا بڑا مرحلہ ہوتا تھا۔ اس نے سارے شاپرز بیڈ پر ڈالے، عائشہ نے نگاہ ترچھی کر کے نہیں دیکھا مگر خود کو کام میں منہمک ظاہر کیا۔ لگتا ہے مصروف کے مزاج ٹھکانے آنے لگے ہیں، وہ سوچنے لگی تھی۔ میں بھی اتنی جلدی تو بخشوں گی نہیں، بہت سچ کیا اور خوب میرا امتحان لیا ہے۔ تم نے چیزیں تو دیکھی نہیں، میں نے پہلی دفعہ لیڈیز شاپنگ کی ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد رک کے گویا ہوا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل جانا اور میرے لیے بھی اسپیشلی شاپنگ کی۔ وارڈروب بند کر کے اس نے گویا طنز کیا، وہاں جذبس ہو کے رہ گیا۔ کپڑوں میں اس کی سرخ اور سفید رنگت اور بھی دہک رہی تھی۔ کومل نازک ہاتھوں میں کانچ کی اور سونے کی چوڑیاں جلترنگ مچا رہی تھی، وہ اپنی نگاہوں کو روک نہیں سکا۔ دیکھ تو لو، نرم سے لہجے میں گویا ہوا، بعد میں دیکھ لوں گی، اور پھر گھر میں رہنے والی خواتین سادہ کپڑوں میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ویسے بھی آپ کو زیادہ زیورات پسند نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں میں ویسے ہی بنی رہوں۔ وہ دل کھول کے اس پر طنز کے تیرے برسا رہی تھی۔ میں عید کے لیے لایا ہوں، میری پروموشن بھی ہوئی ہے، مبارک ہو۔ شکریہ۔ وہ اسے دل کھول کے زج کری تھی، اسے پتا تھا وہ بھڑکے گا ضرور۔ دیکھے بغیر وہ ڈبہ کھول کے گرین امبریڈری سوٹ دکھانے لگا۔ عائشہ نے دیکھ تو لیا تھا، وہ ہر چیز ہی اعلیٰ اور خوبصورت لایا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اس کی چیزوں کا اہمیت نہیں دے رہی تھی تاکہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس تو ہو۔ آپ اپنے مزاج کے خلاف کیسے ہوگے؟ یہ تو رسالوں ڈراموں میں ہوتا ہے، شوہر بیوی کے لیے چیزیں لاتا ہے۔ گویا اس نے پھر چتایا، عائشہ بس کر دو پلیز۔ وہ جیسے بیزار ہی ہو گیا تھا، تھک گیا تھا وہ اپنی ایسی لائف سے۔ وہ غلط تھا جو ایسی سوچ رکھتا تھا۔ امی کے بال سے تو اس نے ہنسنا بولنا جیسے اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا، مگر جیسے عائشہ آئی تھی اس نے اس کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ اسے زندگی اچھی لگنے لگی تھی، کوئی تو تھا جو اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ان فارمیلٹیز میں نہیں پڑیں، میری شاپنگ عید کی پہلے ہی ہو گئی ہے، وہ بولی، مگر اس کے چہرے پر افسردگی بھی تھی۔ آپ کسی کے کہنے پر زبردستی وہ کام نہیں کریں جو آپ کا دل نہیں چاہتا۔ عائشہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو گڑبڑا ہی کیا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی یہ سب کچھ وہ کسی کے کہنے پر کر رہا ہے۔ میں حقیقت پسند بن گئی ہوں، زندگی میں پیار و محبت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے ہکا بکا وہاج کا چہرہ دیکھا۔ آخری اشرا بھی تمام ہو گیا تھا، آخری روزہ تھا، اس دفعہ پورے 30 روزے ہوئے تھے۔ شکر ہے کہیں تو 30 روزے ہوئے ہیں۔ عائشہ نے گھر کی آرائش وغیرہ سب پہلے سے ہی کر لی تھی، امی کے گھر سے بھی سب ہو کے چلے گئے تھے۔ سارا کی کال آ گئی تھی جس نے خاص طور پر کہا تھا کہ عید کے دوسرے دن سے ہی وہ رہنے کے لیے اس کے پاس آ جائے، کیونکہ میکے میں اس کے جو 2 دن تھے۔ بھابھی کیا پکا رہی ہیں؟ فراز کچن میں آیا۔ شیر خورما بھی بنا کے رکھ رہی ہوں۔ واؤ، اس دفعہ تمہارے گھر رمضان اور عید پر ہی رونق ہی لگ گئی۔ فراز بہت خوش تھا۔ یہ تو ہے، وہ جلدی کام نپٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ تم ایسا کرو، روحا کو بھیجو، مجھے کام ہے۔ اتنے میں وہ آج بھی کچن میں آ گیا۔ شیر خورمے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس دفعہ تو گھر میں رونق کتنی اچھی لگ رہی تھی، ورنہ ہر دفعہ کوئی عید تک خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ روحا پھوپھو کی طرف چلی جاتی تھی، گھر میں اور سناٹا ہو جاتا تھا۔ سارے کام ابھی کرنے میں لگی ہو؟ جی یہی تو میرا اب کام ہے۔ وہ برنر بند کر کے کیبنٹ سے ڈونگے نکالنے لگی۔ وہ آج نے دیکھا اس نے کچن کتنا صاف ستھرا اور کرینے سے رکھا ہوا تھا، ورنہ تو پہلے کچن کی حالت ہی اتنی خراب تھی، کوئی چیز جگہ پر نہیں ملتی تھی۔ کل عید کے بعد پہلے دن میرے دوست گھر آئیں گے، وہ بتانے لگا۔ میں سارا کچھ تیار کر کے ٹیبل پر لگا دوں گی، مجھے امی کی طرف جانا ہوگا کیونکہ عید کے دوسرے دن سے سارا مایوں بیٹھے گی۔ اس نے ساتھ ہی اپنے جانے کا شیڈیول بھی بتا دیا۔ کیوں، تم مہمانوں کو ریسیو نہیں کرو گی؟ آپ کو بتایا تو ہے مجھے کل جانا ہے۔ اس نے ڈونگے دھو کے سنک پر ہی الٹ کر کے رکھ دیا اور پھر باقی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہاں اس نے حسرت بھری نگاہ ڈالی، وہ اسے بالکل ہلا تلکی برتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوستوں کو منع کر دیتا ہوں، جب تم ہی یہاں نہیں ہو تو فائدہ۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوا، خوف کی اس کے انداز میں نمایاں تھی۔ عائشہ کو اس کی حرکت چونکا کی، وہ اتنی اہمیت کچھ دنوں سے اسے دینے لگا تھا۔ آپ کی مرضی ہے۔ وہ کچن سے نکل گئی۔ بھابھی آپ نے بلایا تھا؟ روحا دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائے چلی آئی۔ اور تم مہندی لگوا بھی آئی؟ عائشہ نے اس کے ہاتھوں پر مہندی کے سجے ڈیزائن دیکھے۔ بابا کو زبردستی اٹھا کے گئی تھی، سامنے جو پارلر ہے وہاں مہندی لگانے کا بھی انتظام ہے، آپ بھی جا کے لگوا آئی ہے؟ نہیں گڑیا، بھی مجھے ڈھیروں کام ہے اور پھر اس کی خاص ضرورت بھی نہیں، سارا کی شادی تو آ ہی رہی ہے، تبھی لگوا لوں گی۔ اس نے مسکرا کے منع کیا۔ بہاج کو ایسا لگ رہا تھا وہ اسے جتا رہی ہو، وہ اسے ہر طرح سے ہی منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عائشہ اس سے فاصلوں پر رہ کے بات کرنے لگی تھی۔ تمہاری یہ پہلی عید ہے، تمہاری امی کیا کہیں گی؟ تم نے مہندی بھی نہیں لگوائی؟ ایسا کچھ وہ نہیں بولیں گی، اب پریشان نہیں ہو، جو چیز آپ کو پسند نہیں میں کرنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اسے زج کیے جا رہی تھی۔ اس نے روم کو بھی پہلے ہی صاف ستھرا کر لیا تھا، وہ آج کے کپڑے بھی پریس کر کے ہینگ کر دیے تھے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟
وہ اس کے سامنے آ گیا اور راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ تائشہ نے دیکھا وہ بہت ہراسا اور پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ اکتا گیا ہو۔ نگاہ چرا کے جانے لگی۔ میری بات کا جواب دے، بغیر نہیں جا سکتی۔ اس نے تائشہ کا بازو پکڑ کے خود سے قریب کیا۔ وہ گھبرا گئی تھی، سانسوں کا ردم تیز ہو گیا، ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ وہ آج کا انداز اتنا جا رہا نہ تھا۔ راستہ تو چھوڑے، دیکھ بھی رہے ہیں 11 بج رہے ہیں، اتنے کام پڑے ہیں اور صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ وہ کسے آ گئی؟ میں جو راستے میں کھڑا ہوں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ معنی خیزی سے کہتا ہوا اس کے مزید قریب آیا۔ تائشہ کے وجود میں ہلچل سی مچ گئی، یعنی جس گھڑی کا اسے انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی تھی۔ وہ آج کو اس کی طلب ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی اہمیت کو جان گیا تھا۔ سب دکھائی دے رہا ہے، ہٹے۔ وہ اسے ہاتھ سے پیچھے ہٹا کے واش روم میں گھس گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک تم میرے جذبات اور احساسات کو نہیں سمجھتی۔ وہ آج میں اتنی ہمت جانے کیوں نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کو مان کر اسے اعتراف محبت کر لے، یا پھر وہ ابھی بھی انا کو لیے بیٹھا تھا۔ ان 4 مہینوں میں تائشہ نے خود کو منوا لیا تھا۔ وہ اس کی صلاحیتوں کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ اپنے بابا اور فراز کے کپڑے دیکھ کر تو وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس نے خود سے پہلے سے خرید کے ٹیلر سے سلوا بھی لیے تھے۔ وہ تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی آ رہی تھی اور وہ آج اس کی نیت پر بھی پھر بھی شک کرتا رہا تھا۔ احساس اسے اس وقت ہوا تھا جب وہ روٹ کے میکے چلی گئی تھی۔ وہ تو بخلایا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز کھو گئی ہو۔ اس کے کہنے سے تو نہیں، بابا کے کہنے پر آ گئی تھی۔ وہ بڑوں کی عزت اور اہمیت سمجھتی تھی اور وہ اپنے بڑوں کو ناراض کرتا تھا۔ وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی تو آج کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آج چاند رات تھی اور کل عید، سب کچھ ہی الگ اور اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس گھر میں عید کی طرح آ رہی تھی وہ، اور اب وہ اپنی اس عید کو بالکل بھی خراب نہیں کرے گا۔ اسے تائشہ کو یقین دلانا تھا۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ زبان سے اقرار کر لے تو اس کے لیے وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لائٹ آف کر کے وہ لیٹ گئی۔ وہ آج بھی آ کر لیٹ گیا۔ عجیب انسان ہے، اگر زبان سے 2 پیار بھرے الفاظ ہی بول دیتے تو کیا ہو جائے گا؟ چاہتے ہیں میں ان سے صلح کر لوں مگر پہل نہیں کریں گے۔ وہ کروٹ لیے وہ آج کی ضدی طبیعت پر افسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق عید مبارک کہوں گا۔ میں روکھا اور رومانٹک دیکھنا تمہیں حیران نہ کر دیا تو کہنا، ایسا تو تم نے کسی کہانی میں بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ وہاج نے اپنے اندر کی انا کے بت کو توڑ کے لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا، اگر بیوی کو منانے کے لیے انا کو ماننا پڑے تو کوئی دکھ نہیں۔ وہاج کے لب مطمئن ہو کے مسکرانے لگے تھے۔ اس کی سوچوں سے ناواقف تائشہ شاید سو گئی تھی۔ صبح وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جلدی جلدی ساری تیاری کی، ناشتہ بھی تیار کیا۔ بابا بھی اٹھ گئے تھے۔ بیڈ روم میں آئی تو وہاج بھی اس کا ہی لایا ہوا قمیص شلوار نہا کے پہن کے نکلا تھا۔ تائشہ کو خوشی بھی ہوئی۔ شکریہ ان کپڑوں کو عزت دینے کا۔ میں نماز پڑھ کے آؤں تو تم بھی میرے لائے ہوئے کپڑوں کو پہن کے عزت دیتی ہوئی نظر آؤ۔ ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو۔ تھوڑا روب اور دھون سے کہا۔ وہ چونک ہی گئی مگر انداز میں اپنائی تھی۔ نماز کے لیے بابا اور فراز سے بلانے گئے تو وہ جلدی جلدی کر کے تیار نکل گیا۔ تائشہ کے لب مسکرات گئے تھے۔ اسے آج بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ہاشنی نے سے خود سے تیار ہونے کے لیے کہا تھا، وہ بھی اپنے لیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی جلدی اس نے بھی تیاری کی۔ گرین سوٹ اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا، ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں اور میک اپ سے اسے بہت حسین بنا رہا تھا۔ کتنا اچھا لگا تھا اسے اس طرح دل سے تیار ہونا، وہ بھی اپنے پیا کے لیے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ وہ آج اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا اظہار کرتا رہے۔ بھابھی آ جائیے، سب نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ روحا بھی تیار ہوئی اسے بلانے آ گئی تھی۔ بھابھی ماشاءاللہ سے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بس مہندی کی کمی رہ گئی۔ روحا نے اس کی تعریف کی۔ وہ جھنم کے مسکرا دی۔ دونوں ہی باہر آ گئی تھی۔ بابا کو سلام کیا۔ بابا نے سب کو عیدی دی۔ وہاج کی نگاہ اس کے وجود میں الجھ گئی۔ تائشہ نے اس کی بات مان کے صلح کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ عید تو اس کی اور بھی خوبصورت اور انوکھی ہو گئی تھی۔ وہاج بہت خوش تھا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ فراز کے دوست آ گئے تو وہ ان سے ملنے باہر چلا گیا۔ روحا بھی اپنے فرینڈ سے کال پر بات کر رہی تھی۔ تم لوگ پہلے آمنہ کی طرف چلے جانا۔ بابا چیئر گھسیٹ کے اٹھ کے، وہ بھی فجر کے اٹھے ہوئے تھے، انہیں نیند آنے لگی تھی۔ بابا آرام سے، شام میں جائیں گے۔ وہاج نے چائے کے سپ لیے۔ تائشہ نے اسے گھورا۔ ابھی تک اس نے تعریف میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ اسی طرح نارمل ہی تھا۔ نہیں بیٹے، پہلے چلے جانا، تائشہ کی پہلی عید ہے، میکے والے انتظار کرتے ہوں گے۔ بابا ان تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے، اس سے سمجھانے لگے۔ وہاج نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تائشہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ چھوڑو یہ سب، یہ تم روز کرتی ہو، اندر آؤ۔ وہاج نے اس کا بازو پکڑا۔ بابا کے جاتے اس کی ٹون ہی بدل گئی تھی۔ تائشہ پر تو شاید مرگ طاری ہو گیا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی مہمان آ جائے گا، ایسے ہی پھیلا رہے گا کیا؟ وہ تو گرتے گرتے بچی۔ وہاج اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم میں آئی، وہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی بسارت یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے سکتا ہو گیا تھا۔ پورے بیڈ روم اور بیڈ پر پھول ہی پھول تھے۔ یہ کب اور کیسے کیے؟ سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تم کچن میں تھی، ناشتہ لگا رہی تھی، میں نے جلدی جلدی یہ سب کیا۔ پھول میں کل رات کو ہی لے آیا تھا۔ وہاج اتنا رومانٹک ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو ایسا صرف بولتے بولتے رکی سالوں میں پڑھا تھا، فلموں میں دیکھا تھا نا، یہی کہنے والی تھی نا۔ وہ ہنسا تھا۔ تائشہ کا ایسا دلکش روپ دیکھ کر تو وہ بہک کے جا رہا تھا۔ مجھے آج یہ کہنے میں آر نہیں، جس دن سے تم نے میری زندگی میں قدم رکھا ہے، تم نے اپنی خوبیوں سے میرا دل جیت لیا ہے، میں دل سے تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اس نے مسکرا کے اعتراف محبت کیا تھا۔ تائشہ نے مبہوت ہو کے پلکوں کی جھالر گرا لی۔ شرم و حیا کی لالی اس کے رخسار کو قندھار اناری کی طرح سرخ کر رہی تھی۔
अरे तुम तो ऐसी शख्सियत हो जिसने वहाज अहमद जैसे रूखे फीके इंसान को बदल दिया। इसने तायशा के शानों पर अपने दोनों हाथ बड़े प्यार से रखे थे। और बोलो क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कजिन सारा के मंगेतर की तरह प्यार भरी रोमांस की बातें करूं? बोलो क्या करूं? वो भी से छेड़ रहा था तो तायशा झिनक की, यानी इसने सारा की उसकी सारी बातें सुनी थी। मैं इस दिन तुम्हारे घर आया था, सब सुन लिया था। तुम क्या कह रही थी मेरे मतलब? कौन सा? वो मैं आपकी सोबर शख्सियत से डर रही थी। फिर अब आप हर वक्त सालों का ताना देते थे जबकि वो सब छोड़ के आई थी। यार क्यों छोड़ के आई हो? अपने शौक जारी रखो, मगर मुझे याद जरूर रखना। वो तायशा को हर तरह से खुश रखना चाहता था। जब वो इसके मिजाज में ढल गई थी, थोड़ा इसका भी फर्ज था इसके शौक का ख्याल रखे। नहीं, अब दिल नहीं करता। इसने बेड पर गुलाब और मोती और दीगर फूल देखे। पूरा कमरा महक रहा था इसकी तो फूलों से भर गई थी। नहीं, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। रोज़ तुम्हें मेरी प्यार भरी बातें सुनने को मिलेंगी। वैसे यार एक बात का दुःख है, मैंने इतनी देर तुमसे शादी क्यों की? पहले ही कर लेता, कम से कम हमारे 2-4 बच्चे होते तो मुझे बाबा की शादी के बारे में नहीं सोचना पड़ता। बाबा की तन्हाई तो हमारे बच्चे ही दूर कर देते। वो बहुत शौक और तरंग में था। तायशा के हमारे यहाँ से निगाहें नहीं उठ रही थी। वह आज इतनी बेबाक गुफ्तगू जो कर रहा था, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसने फिर तायशा के कान में कहा। इसने मुस्कुरा कर रुख फेर लिया। सुनो, जल्दी से मुझे ईद मुबारक कहो। ईद मुबारक नहीं, बल्कि आपको खूबसूरत ज़िंदगी मुबारक कहूँगी। वो खुश दिली से मुस्कुरा के गोया हुई। तुमने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भी तो दी है। ये ईद मेरी अम्मी के बाद इतनी अच्छी लगी है। अम्मी देखें, आपकी बहू भी आप ही की तरह है, हम सब का ख्याल रखती है। वो गायबाना अम्मी से मुखातिब था। आप और अब इंशाल्लाह मैं सारी ज़िंदगी आप सबका इसी तरह ख्याल रखूँगी और हमारी ईद इसी तरह फूलों से भरी होगी। आपके यहाँ ईद मिलने का रवाज नहीं है और आपके यहाँ ईदी देने का रवाज नहीं है। जल्दी निकालिए, प्रमोशन भी हुई है, मेरी ईदी निकालें। तायशा ने झट से आंखें निकाल के इसके आगे अपना नाजुक हाथ फैलाया। ये पूरे का पूरा बंदा तुम्हें ईदी में मिल तो रहा है। इसने तायशा को प्यार से अपनी बाहों में समो लिया था और वो कितनी खुश और मुतमईन होगी थी। इसने वहाज का दिल जीत लिया था। प्यार और मोहब्बत समेत इसकी ईद फूलों से भरी हुई हो गई थी। ख़त्म शुद्ध। ये जो ख़त्म हो गया तो आगे क्या खाली पेज है? हाँ, आगे खाली पेज है। ओके जी, मुक गया। आई नो कि इस नावल में ना हमारी रीडिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। राइटर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि डाइजेस्ट के जो नावल होते हैं ना उसमें बहुत कम मिस्टेक होती है। वही कोई 1% लगा लें या 0.5%, क्योंकि वो प्रूफ रीड करके अच्छे से फिट देते हैं। बट हमने आपको स्टार्टिंग से बताया था ना कि हमारी सिस्टर अभी लिख रही है, लाइक न्यू बेशक वो देख के लिख रही है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। फिर उर्दू में लिखना, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग रोमन इंग्लिश या लाइक रोमन उर्दू जो भी उसे कहते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट करते हैं, तो वही यूज़ करते हैं, तो इस वजह से। और फिर उसने 2 सीन लिखे ही नहीं थे, उसे वापस रीटाइप किया और वो कहीं गई हुई थी तो उसकी इंसल्ट भी की मैंने फ़ोन पे। इस वजह से थोड़ा मैं अटकी हूँ, इसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। जहाँ पे मेरी गलती हो तो मैं मान लेती हूँ और मैं माज़रत भी कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी गलती ना हो वहाँ पे बिला वजह मैं कुछ नहीं सुनती भाई। तो इस वजह से मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ। यहाँ पे मेरी गलती थी, मैं कुछ अटकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट नॉवल में ना अटकूँ, ठीक है? तो अगले नॉवल में आप लोगों के साथ मिलते हैं। दुआ करें कि जो मैं एक लॉन्ग नॉवल रेडी कर रही हूँ वो हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, इधर से उधर चक्कर लगा के थक गई हूँ, लगता है मोबाइल चेंज करना पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं रहा, स्पेस का इतना इशू आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ, सारा कुछ वैसे ही खुला पड़ा है। ओके जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारे चैनल का नाम पूछ रहे थे भाई। चैनल को ओनर ने काफ़ी बार कम्युनिटी में भी शेयर किया है और साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ, लेकिन फिर भी चैनल का नाम बता दूँ तो फिक्शन फैंटेसी चैनल का नाम है। अगर आप वो क्या उसको कहते हैं, अब मुझे उसका नाम भूल गया, जो जीमेल में भी आता है, ए होता है और उस गोल सा दायरा, उसका पता नहीं से कुछ कहते हैं, साइन का नाम मुझे भूल गया। तो वो लगा के फिक्शन और आगे एक लाइन लगा के फैंटेसी लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगी फिक्शन फैंटेसी। उस पर 2 शॉर्ट अपलोड है। उस पर मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, लाइक अपने गांव की, एक मतलब लाइक ऊपर से अपना गांव दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में रहती हूँ, बहुत ही लाइक छोटे से गांव में, और चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं मिलती यहाँ से, लाइक मिल जाती हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इस बहाने आप लोगों से कुछ थोड़ी बहुत ही नहीं, बहुत ही लाइक पंजाबी में बहुत बात हो जाएगी, ठीक है? मैं ज़्यादा ही बोल गई हूँ। ओके, चलते हैं, अगले नॉवल में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।